Am I sufficiently audible to each and everyone? You can write in the chat box. Am I sufficiently audible to each and everyone? Is the screen visible to each and everyone? You can just write in the chat box if you want. Okay, perfect. Perfect. Our team member from Udani Capital is there. You can write in the chat box. Our team member from Udani Capital is there. Okay, great. So, sir, once you will get onboarded with us, I'm again repeating, once you will get onboarded with us, you will get a Mulyankan cloud link in your registered mail ID. You will get a Mulyankan cloud link in your registered mail ID. Please do search in the name of Mulyankan Gurukul. If you will search it, you will get a mail. That mail will look something like this. So this is a one-stop cloud link for all the future updation. जितने भी future updation होंगे, this is a one-stop cloud link. You have to just click on a open button or you have to just click on a folder. This will take you towards our cloud-based platform. I'm again repeating, this is a one-stop cloud link, sir. बार बार आपको रेगुलर मेल नहीं आएंगे, प्लीज इसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा. इसी के अंदर रेगुलर हमारे क्लाउड बेस्ड डैशबोर्ड ऑन फोर्टनाइटली बेसिस और ऑन मंथली बेसिस ये अपडेट होते ही जाएंगे. दिस इज अ वन स्टॉप क्लाउड लिंक. So once you will click on an open button, it will take you towards our cloud window. So that cloud window will look something like this. So the agenda for today's session is to cover the broader navigation for a valuation cycle, for a business cycle, and we will go through Algo Master Summary. So we will just cover 3 workbook today, that is a valuation cycle, business cycle and Algo Master Summary along with a category selection. So last 3 की workbook cover कर रहे हैं हम Algo Master Summary cover कर रहे हैं. So these are the 4 workbook which we will cover today. So today we will just focus on an Excel based dashboard. Apart from that, we have in our offering, in our product bouquet, Marina is also there. So Marina will help you in a style selection. Apart from that, we have a Mulyankan GPT. So for Mulyankan GPT, we will have a different separate session. Who have already attended our session, we have shared a video recording with respect to the Mulyankan GPT. Please go through it. So again, I am repeating, the only agenda today will be valuation cycle, business cycle, category selection and the Algo Master Summary. आज मैं मूल्यांकन जीपीटी कवर नहीं कर रहा हूँ, आज मैं मरीना कवर नहीं कर रहा हूँ. That we will do in a different session. उसके लिए हम separate session में cover करेंगे. So first of all, let me tell you some of the new users what we exactly do. So we provide you the data science based framework and system. What does this data science based framework and system do? This exactly evaluate valuation cycle and business cycle. ये valuation cycle और business cycle को evaluate करता है and उसके evaluation के basis पे ये बताता है कि हम cycle में कहाँ खड़े हैं. Where are we standing in the cycle? अब इसकी key utility क्या है? इसकी key utility ये है कि आपको ये asset class selection, category selection, सब कैटेगरी सिलेक्शन, स्टाइल सिलेक्शन एंड लास्टली फंड सिलेक्शन में हेल्प करता है. अगेन आई विल रिपीट, 90% इसकी जो प्राइमरी एक्सपर्टीज है वो कैपिटल एलोकेशन को लेके है, 10% इसकी एक्सपर्टीज फंड सिलेक्शन को लेके. Now, why we are totally focusing on a category selection, why we are not focusing on a fund selection? Because we strongly believe कितना भी अच्छा फंड ले लो, अगर कैटेगरी नहीं चलेगी तो फंड नहीं चलेगा. So our is the first India's research based tool which use data science based algorithm and which use machine learning. जिस तरीके से AI और machine learning डेवलप हो रहा है तो हम machine learning को यूज करते हैं एंड ये फिर आपको इवेल्युएट करके ये बताता है कि कौन से मार्केट के साइकिल के कौन से जोन में कौन सी कैटेगरी फेवरेबल है एंड कौन सी कैटेगरी अनफेवरेबल है. सो ये आपको टॉप डाउन में अप्रोच में हेल्प करता है. एज एन इन्वेस्टर आप देखोगे सबका इन्वेस्टर का या एडवाइजर का जो फोकस होता है वो जनरली ये होता है कि फंड कौन से अच्छे. वी आर फोकसिंग ऑन अ टॉप डाउन कि पहले अगर पैसा आ रहा है तो लमसम डालना है कि एसटीपी डालना है.
अगर लमसम डालना है तो कौन से एसेट क्लास में कितना डालना है, कौन सी कैटेगरी में डालना है, कौन सी सब कैटेगरी में डालना है. लास्टली we integrate the risk profiling of investor with the risk profiling of asset class also. What I'm trying to say कि आप लोगों का जो मेजर जो जॉब है, आप लोगों का जो की रोल है, वो है इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग करना. I am again repeating, the major key role of an advisor is to do a risk profiling of an investor. हमारा जो मेजर की रोल है वो एसेट क्लासेस का रिस्क प्रोफाइलिंग करना है. सो इनिशियली वी विल लर्न द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ एसेट क्लास, की एसेट क्लास की कैसे रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है. आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ इन्वेस्टर विद द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ एसेट क्लास, एंड दोनों के इंटीग्रेशन से आपको फिर बताएंगे कि कैसे इस इन्वेस्टर का कैपिटल एलोकेशन आपको करना चाहिए. क्लियर है क्या सर? I will just wait 1 minute here, and if anything is unclear, you can ask a question. You can unmute and you can ask a question. So majority of the research tool is focusing on a fund selection. Our is India's first tool, which is on the basis of data science and machine learning, is focusing on a capital allocation. So when I am saying capital allocation, so it is all about पहले तो लमसम जाना है कि एसटीपी जाना है, अगर एसटीपी जाना है तो कब तक जाना है, कब तक एसटीपी को क्लोज करनी है. सेकेंडली कौन से एसेट क्लास में जाना है, कौन सी कैटेगरी में जाना है, कौन से स्टाइल में जाना है, एंड लास्टली फंड आता है. क्लियर है क्या? I hope my voice is very much clear and I am sufficiently audible to each and everyone. If anyone is having a problem with the Hindi, they can write in a chat box. I can keep my entire conversation in English. If anyone is there and they want कि हिंदी में नहीं सर इंग्लिश में कीजिए, they can write in a chat box. And if everyone is comfortable with a mix and match of English and Hindi, then I will have a mix and match of English and Hindi. Okay, sir, done. ठीक है sir, done. Done, sir, done. So we'll have a mix and match of English and Hindi for both the kind of audience. So we will start a valuation cycle. So valuation cycle help us to assess where are we standing in valuation cycle. Business cycle help us to assess where are we standing in earning cycle. तो हम पहले valuation cycle से start करेंगे. So whenever you will open a workbook, वो कहीं से भी open हो सकती है. So I will cover the workbook also, and I will cover a brief overview and navigation part also. ठीक है? So जहां से भी open होगी, just click on a open button. या तो आप होम बटन में क्लिक कर दीजिए या तो मेन मेनू में क्लिक कर दीजिए. आपको होम बटन भी है, आपको मेन मेनू भी है. जब मेन मेनू में क्लिक कर देंगे, so my each and every dashboard will have 3 color. There will be a summary, there will be an orange color, and there will be a green color. Summary is for the set of advisor who directly want action, or let's say who directly want a to do list. जिनको डायरेक्टली ये समझना है कि हमको करना क्या है, वो डायरेक्टली समरी में चले जाएंगे. सो ऐसे मेरे अगर आप देखोगे तो मेरे 6 वर्कबुक है. इस तरीके के मेरे 6 वर्कबुक है. हर वर्कबुक में जो आपको कलर जो मिलेगा, इस प्रकार का 3 कलर मिलेगा. ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर. सो ब्लू कलर में डायरेक्टली आपके एक्शन है, ऑरेंज कलर में डिटेल्ड वर्किंग है उस एक्शन के पीछे, कि जो भी आपको एक्शन बता रहा है उसके पीछे वर्किंग क्या है. एंड फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर हु वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द अंडरलाइंग रैशनल बिहाइंड दिस वर्किंग, तो हमने अंडरलाइंग रैशनल भी पूरे दिए हुए. So now let me start with the common metric that is well versed, our fraternity is well versed with. So our fraternity is well acquainted with price to earning and price to book value. तो मैं इससे start करता हूँ. So I will not go through each and every metric and each and every score. So let me tell you one thing कि industry में किस तरीके से valuation cycle की study की जाती है और data science में valuation cycle की study किस तरीके से करनी चाहिए. I am again repeating. Let me tell you the way industry study the valuation cycle and the way we study the valuation cycle through a lens of our data science. So in industry, if you'll see, there are various metrics which are being used by different manufacturers. Some of the manufacturers use price to earning, some of them use price to book value, some of them use bond equity earning ratio, कोई market cap to GDP use करता है, कोई dividend yield use करता है. तो there are many different metrics. बट सब में एक कॉमन चीज है स्टडी करने के लिए, जो एक फाउंडेशनल जो सबके लिए कॉमन मेथोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल मेथोलॉजी है, दैट इज अ बैंड थ्योरी.
सो जितनी भी हमारी वैल्यूएशन की स्टडी होती है इंडस्ट्री में, वो बैंड थ्योरी के बेसिस पे होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चैलेंजिंग टू द इंडस्ट्री the way this study is being done through a band theory is not going to work the way environment is changing. जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ये बैंड थ्योरी काम नहीं करने वाली है. So, जितनी भी ये बैंड थ्योरी बनती है कि इतना प्राइस टू अर्निंग है तो हम ये इक्विटी एलोकेशन रखेंगे, इतना प्राइस टू बुक वैल्यू है तो हमें इक्विटी एलोकेशन ये रखना है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. सबसे रियल लाइफ एग्जांपल आप देख लो, 2020 मार्च में कितनी एएमसी मार्केट में ओवरवेट थी. तो जितनी भी ये बैंड थ्योरी के बेसिस पे वैल्यूएशन साइकिल की स्टडी होती है, ये एक्चुअली बैक टेस्टिंग में तो बहुत अच्छी दिखती है, बट ये रियल लाइफ में काम नहीं करती है. आई एम अगेन रिपीटिंग, जितने भी आप प्रेजेंटेशन बुकलेट देखोगे मैन्युफैक्चरर्स के, उनकी बैक टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो काफी लुक्रेटिव और काफी रोजी दिखते हैं, बट वो रियल लाइफ में काम नहीं करते हैं. डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? राइट? जितने भी बैक टेस्टिंग होती है पास्ट के डेटा के बेसिस काफी लुक्रेटिव दिखती है, बट वो रियल लाइफ में काम नहीं करती है. क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि बैक टेस्टिंग के बेसिस पे पीछे का मार्केट का डेटा देख लिया जाता है, मार्केट के लेवल्स क्या है, पीछे के वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लिए जाते हैं. और जनरली बैंड कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं. डेटा साइंस की भाषा में इसको कर्व ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं. ये बैंड कैसे बनता है? जहां से मार्केट जनरली गिरा है उसको हायर बैंड बना दिया जाता है, जहां से मार्केट जनरली रिकवर किया है उसको लोअर बैंड बना दिया जाता है. हर कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि हमारा एक इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल है जो शेयर नहीं करते, बट एक फिलोसॉफी सब में कॉमन है कि सब अपना अपना एक बैंड बना के रखे हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चैलेंजिंग, ये बैंड फिलोसॉफी काम नहीं करती. अगर ये काम नहीं करती है, सो हम डेटा साइंस की लैंग्वेज में हम कैसे इसको देखते हैं? लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड. ठीक है? सो वी ऑल्सो लुक एट द सेम डेटा. लेट्स से अभी बस मैं ये दो डेटा ही ले रहा हूं, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू. अदरवाइज वी लुक एट द 20 प्लस मैट्रिक. ठीक है? So we look at the same data, but we look from the lens of a data science. So I just want to wait here for a minute. I hope team members from Udani Capital is there. So first of all, understanding the language which you understand. So I will, of course, will not make you this study complex with the advanced level of data science, but मैं कुछ basics बात करना चाहता हूँ in the language which you understand. So how many of you understand standard deviation? How many of you understand standard deviation? So let me tell you standard deviation in a very easy to understand baby language. In a very easy to understand baby language. I don't know how you have understood the standard deviation. इसको हम समझते हैं कि standard deviation को हम कैसे use कर सकते हैं. ठीक है? So we are looking at the same data, but we look from the different lens. तो कैसा हमारा लेंस हम उसकी बात करते हैं. So 5 foot 7 inch is the average Indian male population की जो average height है 5 foot 7 inch है. I am again repeating, the average Indian age जो है Indian की population की जो average height है 18 year के male population की जो average height है 5 foot 7 inch है. And 0.3 is the standard deviation. And 0.3 is the standard deviation. Now if I want to calculate the standard deviation 1, तो हम क्या करते हैं? मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड कर देते हैं. We add the mean and the standard deviation. So 5 foot 7 inch. So this is the actually the data which is being released by India's Central Statistical Organization 20 year back. 20 साल पहले ना अपना हमारे इंडिया की CSO ये डेटा रिलीज करती थी फॉर द सेट ऑफ इंडस्ट्री विच रिलाइज ऑन हाइट. जो हाइट के ऊपर डिपेंड करती थी ना जो इंडस्ट्री, उनके लिए डेटा रिलीज करती थी. क्या वो बोलती थी कि इंडिया की जो मीन हाइट है 5 फुट 7 इंच है. ठीक है? इंडिया के मेल पॉपुलेशन की जो मीन हाइट है और 0.3 का स्टैंडर्ड डिविएशन है. इसके बोलने का मतलब क्या है? अगर मैं मीन हाइट में अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड करूं, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड कर दूं, तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन 1 मिलता है. तो 5 फुट 7 इंच में अगर मैं 0.3 को ऐड करूंगा तो 5 फुट 10 इंच आ रहा है मेरा. राइट? 5 फुट 10 इंच. सो इफ आई रैंडमली पिक 100 पीपल फ्रॉम इंडिया, अगर मैं 100 लोगों का रैंडमली अगर पिक करता हूं तो 68% लोग मुझे 5'10 या 5'10 के अंदर मिलेंगे. मतलब
510 के नीचे मिलेंगे 68% लोग. If I randomly pick 100 people 5'10" each या 5'10" इंच के नीचे मुझे 68% लोग मिलेंगे. इसका मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का थ्योरम क्या है कि 32% लोग आपको 68% के ऊपर मिलेंगे. अब ये 68% कहां से आ रहा है? दिस इज द थ्योरम. मैं ये थ्योरम कैसे कैलकुलेट होता है उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं अभी इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट में जा रहा हूं. क्लियर है क्या सर ये? If it is not clear, please make me stop then and there only. I will revisit and revise the concept. क्लियर है क्या ये? परफेक्ट. सो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 टेल्स यू कि 32% लोग आपको ऊपर मिलेंगे. ठीक है, थ्योरम है. अब मैं वापिस अगर SD1 में स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड कर दूं, 5'10" में अगर मैं पहले क्या किया, मीन में स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड किया हूं, अब मैं 5'10" में 0.3 को ऐड कर दूं तो मुझे हाइट कितनी मिल रही है? 6'1" मिल रही है. 6'1" की हाइट मिल रही है. सो इफ आई रैंडमली पिक 100 पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया, मुझे 6'1" या 6'1" के अंदर, मुझे 6'1" के अंदर विद इन 95% लोग मिलेंगे. तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का थ्योरम क्या बोलता है कि 6'1" के ऊपर आपको मिल सकते हैं, 6'1" के ऊपर आपको मिल सकते हैं, बट आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5% है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 में जो प्रोबेबिलिटी होती है 32% है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 में जो प्रोबेबिलिटी 5% है. सो हम अब इसको देख रहे हैं 0, 1 और 2 के वे से. 0 में प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर, 1 में 32% ही प्रोबेबिलिटी है, 2 में 5% ही प्रोबेबिलिटी है. अगेन आई एम रिपीटिंग, 0 में प्रोबेबिलिटी इज इन अवर फेवर, 1 में ओनली 32% प्रोबेबिलिटी इज इन अवर फेवर एंड 2 में 5% प्रोबेबिलिटी इज इन अवर फेवर. Is this point clear to each and everyone? I'm just waiting for a 1 minute here. You can just have a look. तो अगेन आई एम नाउ स्टार्टिंग हियर. तो ये आपको हाइट के हिसाब से मैंने SD1 SD2 समझाया है कैसे. नाउ वी विल कैलकुलेट द सेम थिंग फॉर प्राइस टू अर्निंग. नाउ वी विल कैलकुलेट द सेम थिंग फॉर अ प्राइस टू अर्निंग. सो पीक हमने जो मीन हाइट निकाला है 1996 से पहले जो हमने डेटा लिया है 31 दिसंबर 2003 तक का डेटा लिया है. नाउ इफ यू आस्क मी आशीष 1996 से 2003 तक का ही क्यों? सो हम आप एक तरीके से मैं इसमें आपको ये समझा सकता हूँ कि मुझे इसमें 6'1" का फुट का आदमी भी मिल गया है और मुझे 5 फुट का आदमी मिल गया है. सो आई हैव इनफ डेटा वेरिएशन फ्रॉम 1996 टू 2004. तो जब तक हम 2004 तक का डेटा देख रहे हैं तब तक हम 31 दिसंबर 2003 का ले रहे हैं. अगर मान लीजिए अगर मैं 31 अगस्त 2024 तक का डेटा देखूंगा तो मैं 29 अगस्त तक का डेटा लूंगा. सो दैट्स वाई जैसे जैसे मेरा पीरियड बढ़ता जाएगा मेरा डेटा सेट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो हम इंडस्ट्री में जो 5 ईयर मूविंग एवरेज 10 ईयर मूविंग एवरेज जो देखते हैं वो नहीं लेते हैं. हम पूरा हिस्टोरिकल डेटा का जो है पूरा का सिनॉप्सिस उठाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये चीज सीख रहे हैं द वे दैट बैंड थ्योरी इज बीइंग मेड कि 15 का पी है तो हम ये इक्विटी एलोकेशन रखेंगे, 4 का प्राइस टू बुक वैल्यू है तो हमें ये इक्विटी एलोकेशन रखना. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? So first of all, what we are calculating here, we are calculating the mean of the P and then we will calculate the standard deviation of the P.
तो मान लीजिए ये मुझे 15 का पी का मीन मिल गया है, ठीक है, एंड जो स्टैंडर्ड डिवीजन जो आ रहा है 4 का स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, 15 का पी का मीन मिल गया है, 4 का स्टैंडर्ड डिवीजन मिल गया है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन, मैं ये दोनों को ऐड कर दूंगा, 15 और 4 को मैं ऐड कर दूंगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन 1 मिल जाएगा, राइट? तो मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन 1 मिल गया 19 का। Now let's dramatize the situation that you are not sitting in 2024 and you are sitting in 2023. I'm again repeating. Let's dramatize the situation. अभी आप भूल जाओ 2024 में बैठे हुए हो, अभी मैं 2023 की बात कर रहा हूं, और अभी आप भूल जाना कि हम इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग कंसीडर कर रहे हैं। अभी हम जो भी बातें करेंगे एसेट क्लासेस के रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से बात करेंगे, उसके बाद में हम इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल को इंटीग्रेट करेंगे एसेट क्लास के रिस्क प्रोफाइल से। क्लियर है क्या सर? सो अवर कोर expertise is doing a risk profiling of an asset class and category. So what we strongly believe, 90% of the जो result आता है ना आपका सर, वो इससे आता है कि आप लमसम डाल रहे हो कि एसटीपी कर रहे हो। अगर लमसम डाल रहे हो तो इक्विटी में कितना डाल रहे हो, कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हो, कौन सी सब कैटेगरी में डाल रहे हो। 10% जो रिजल्ट आता है वो फंड सिलेक्शन से आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, अब मैं इसको जाने के पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। सपोज इफ आई एम कमिंग टू यू इन 2004, अभी आप भूल जाओ 2024 सेकंड में बार बार बोल रहा हूं। सपोज इफ आई एम कमिंग टू यू इन 2004 एंड आई वांट टू इन्वेस्ट लेट्स से 10 लाख रुपीस। सो मैं एज अ इन्वेस्टर, मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि मुझे सर 3 से 5 बेस्ट फंड बताओ जहां पे मेरा 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई हो जाए। बट यू एज एन एडवाइजर नो, कोई बेस्ट फंड या कोई वर्स्ट फंड नहीं होता है। कि यू एज एन एडवाइजर, अगर मैं 10 लाख रुपए ला के दे रहा हूं आपको, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सब मुझे बेस्ट फंड दो। बट आप सबसे पहले, अगर मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो आप सबसे पहले क्या चीज देखोगे? अभी मेरा इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग छोड़ दो कि क्या मेरा गोल है, क्या मेरा टाइम होराइजन है। अगर मेरा गोल अभी टाइम होराइजन, वो बात की बात करेंगे, ठीक है, वो बाद में इंटीग्रेट करेंगे दोनों चीज को। बट अभी अगर मैं बस 10 लाख रुपए दे रहा हूं, सबसे पहले आप क्या चीज देखोगे, क्या चीज इवेल्युएट करोगे? सबसे पहले चीज आप क्या देखोगे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। सबसे पहली चीज क्या देखोगे आप? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वसीम सर, विपुल सर, रवि सर, पुरुषोत्तम सर, नीरज सर, मनीष शर्मा सर, गौरव लल्लावानी सर, क्या देखेंगे सर? हाँ सर। सबसे पहली चीज क्या देखोगे सर? 10 लाख रुपए लाके दे रहा हूं मैं, मेरा तो अप्रोच यही रहेगा कि मुझे बेस्ट फंड दो। आप क्या चीज स्टडी करोगे? मार्केट किस वैल्यूएशन पे? मार्केट के वैल्यूएशन, राइट। तो मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पे सबसे पहले डिसीजन आप क्या लेते हो कि मुझे इस इन्वेस्टर का पैसा लमसम डालना है कि एसटीपी करनी है, राइट? एसटीपी हाँ राइट। तो सबसे पहले आपका जो डिसीजन होगा वो रेदर देन फंड, आपका डिसीजन यहां पे आएगा। पहला जो अल्फा निकलेगा एडवाइजर का, एडवाइजर्स अल्फा जो पहले इनिशियली जो निकलेगा वो इससे निकलेगा कि पहले मुझे इस इन्वेस्टर का अभी पैसा लमसम डालू कि स्टैगर्ड मैनर पे डालू। स्टैगर्ड मैनर का दूसरा नाम क्या है हमारी इंडस्ट्री में? एसटीपी है, राइट? तो अब मान लो हमने पी के मीन को और इसको ऐड कर दिया है, आपका 19 का स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया है, और 19 का स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब का बोलने का मतलब ये आपका 1 है। सो इफ यू आर गेटिंग 19 पी ऑन दिस पर्टिकुलर डे, आपके लिए मार्केट में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो अवेलेबल है वो बस 32% मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। अगर मैं 19 में वापस 4 को ऐड कर दूं तो 23 का पी आता है। तो मार्केट में इस दिन जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है, कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मार्केट में? 5% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगेन प्लीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप लोग कंसीडर रैली मत कीजिएगा, 5% की रैली नहीं बची है, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा हूं। रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल है हमारे फेवर में वो बस 5% है, अगर इस दिन मुझे 23 की पी मिलती है। अब मैं देख लेता हूं करंट पी क्या है 1 जनवरी 2004 की। करंट जो पी है मार्केट की वो है 21। तो ना ये 19 है ना ये 23 है, ये दोनों के बीच में आ रही है, राइट? 19 और 23 के बीच में आ रही है। तो इसका जो एग्जैक्ट निकल गया है, जो 012 में इसका जो वैल्यू निकला है वो निकला है 1.38। तो मार्केट में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल था हमारे फेवर में, वो 32% भी अब नहीं है, 32% के ऊपर निकल चुका है। मतलब कहीं ना कहीं 25% ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेवरेबल है। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपीस दे रहा हूं तो आप लमसम करोगे कि एसटीपी करोगे? नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ईच एंड एवरीवन नाउ। एसटीपी ही करेंगे। सुरेश सर, व्हाट यू विल डू? क्या एसटीपी?
You will do STP, right? Dinar, so you will do the STP. Full lump sum, sir. Yes, sir. Yes, You will sir. put a lump STP sum here. करेंगे. Why lump sums are only 25% margin of safety is available. Only 25%. Yes. You will do a lump sum or STP. STP करेंगे. STP करेंगे, right? I hope same answer belongs to each and everyone. So we will do the STP here. So first of all, the first question comes कि हमको लमसम कब डालना है, हमको एसटीपी कब करना है. तो आप मान लो यार एसटीपी करोगे, मैं इसको नेविगेट करता हूं मंथली बेसिस पे ताकि हम क्विकली नेविगेट कर लें. So now whatever we will evaluate on the basis of 0, 1, 2. हमें मार्केट के लेवल से कोई मतलब नहीं है, हमके मार्केट के अंदर के अंडरलाइंग वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या चल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है. हम जो भी नाउ वी विल व्हाटएवर असेसमेंट वी विल डू ऑन द बेसिस ऑफ वेयर आर वी स्टैंडिंग. मतलब मुझे फ्यूचर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पास्ट में जो हो गया. नाउ लेट्स एनालाइज द सिचुएशन दैट जनवरी 2004 में मैं आपको 10 लाख रुपीस लाके दे रहा हूं. तो पहला लेवल ऑफ जो एडवाइस जाता है वो यहां पे जाता है कि कौन से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मेरा पैसा जाना चाहिए. तो मान लीजिए यहां पे आप क्या करोगे, 1.36 का स्कोर है, 1.45 का स्कोर है. अगर दोनों में से कोई भी अगर एक जीरो दिखा रहा है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर दोनों में से अगर कोई भी एक जीरो दिखा रहा है तो मार्केट में आप ओवरवेट हो जाओगे. अगर आपको दोनों ही अगर जीरो दिखा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब पूरा एक्सट्रीमली मार्केट जो है आपके लिए फेवरेबल है. मतलब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सट्रीमली फेवरेबल है आपके फेवर में, तो आप मार्केट में लोन भी ले लोगे. सॉरी सर, ये 1.36 कैसे निकाला, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया. हाँ, अब ये मंथली 1.36 एवरेज हम कैसे निकाल निकाला वो नहीं क्विकली समझ नेविगेट में कर रहे हैं, क्विकली नेविगेट कर रहे हैं. 1.36 इज द मंथ एवरेज. डेली जो हम कर रहे थे यहाँ कैलकुलेट में, डेली की जगह मंथली में आ गया हूं. हमने डेली का मार्केट का अंडरलाइंग वैल्यू लिया और डेली का हमने स्कोर निकाला है और उसको मंथली एवरेज में कन्वर्ट कर दिया है. मैं आपको चाहूं तो डेली दिखा सकता हूं, बट मैं डेली दिखाऊंगा तो बहुत पूरा 3 घंटा इसी में निकल जाएगा. यहाँ पे डेली है और वहां पे हम मंथली में आ गए, बस और कुछ फर्क नहीं है. आया. अंडरस्टूड. क्लियर है क्या सर? यस सर, क्लियर. ठीक. Now in data science we are least bothered about market level, we are least bothered about क्या न्यूज चल रही है, क्या इवेंट चल रहा है. डेटा साइंस में ये सबका कोई स्कोप ही नहीं होता है कि क्या न्यूज है, क्या इवेंट है, कौन क्या नैरेटिव बोल रहा है, कौन किसका व्यू मार्केट आउटलुक को लेके क्या है, उससे कोई मतलब नहीं. बस एक ही चीज स्टडी करता है, दैट इज द डेटा साइंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव लर्न कि हमको मार्केट को नहीं देखना है, हमको मार्केट का अंडरलाइंग वैल्यू को देखना है. हम डेटा साइंस में थर्ड लेवल में आ रहे हैं. हमको ना मार्केट का लेवल देखना है, ना मार्केट के अंडरलाइंग वैल्यू देखनी है. मार्केट के अंडरलाइंग वैल्यू के भी हम फर्दर स्कोर को देख रहे हैं. क्लियर है क्या सर? और वो स्कोर अभी मैं अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज व्हिच यू अंडरस्टैंड. मैं आपको 0, 1, 2 के हिसाब से समझा रहा हूं अभी. नाउ 1.36 दोनों अगर 1.25 के आसपास है तो आप मार्केट में एसटीपी करोगे. अगर दोनों ही 1.5 के आसपास आ गए, मतलब मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सट्रीमली अनफेवरेबल है, तो आप वहां से धीरे धीरे डेट में पैसा स्विच कर दोगे. अगर मार्केट में आपको जीरो मिल रहा है तो मार्केट एक्सट्रीमली आपके लिए फेवरेबल है, तो मार्केट में आप लमसम पैसा डालोगे. तो मेरे को एक बात आप लोग बताइए सर, मैं यहां पे अनम्यूट कर रहा हूं. यहां पे अगर कोई लमसम डालेगा तो सबसे पहले मान लीजिए 2023 में, पहला मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसने लमसम डाला उसने ज्यादा पैसा कमाया कि जिसने एसटीपी किया उसने ज्यादा पैसा कमाया? पहला क्वेश्चन. लमसम. लमसम में. तो पहला आंसर ये आता है कि पहला तो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका सही होना चाहिए. सेकेंड ये आता है कि कौन से एसेट क्लास में होना चाहिए. थर्ड ये आता है कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए. फोर्थ ये आता है कौन सी सब कैटेगरी में होना चाहिए. फिफ्थ ये आता है कौन से स्टाइल में होना चाहिए. और लास्ट फंड का आता है. अब मान लीजिए किसी ने एसटीपी की होगी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड में, और किसी ने लमसम डाला होगा वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट इक्विटी फंड में. कौन ज्यादा पैसा कमाएगा 2023 में? जो कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? जो लमसम वाला. लमसम डाला होगा, राइट. सो अगेन इट इज नॉट अबाउट फंड सिलेक्शन.
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट कि आप पहले पैसा लमसम के वैसे जा रहे हो कि पैसा आप एसटीपी की वैसे जा रहे हो. सो सिमिलरली अभी हम इन्वेस्टर का प्रोफाइल कंसीडर नहीं कर रहे. वॉट एवर वी विल इवेल्युएट, वॉट एवर वी विल असेस, इट विल बी टोटली ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ एसेट क्लास एंड रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ कैटेगरी. हम बाद में देखेंगे कि इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल को कंसीडर करके हमें फिर कैसे डिसीजन लेना है कि एसआईपी कर रहा है तो कैसे लेना है, एसडब्ल्यूपी करना है तो कैसे लेना है, लमसम डाल रहा है तो कैसे लेना है, जिनको मॉडरेट इन्वेस्टर है और रिटायरी इन्वेस्टर है तो कैसे करना है, वो हम बाद में आएंगे. अभी हम एसेट क्लासेस के हिसाब से अभी डिसीजन लेंगे पहला. तो आप यहाँ लमसम डालोगे, सॉरी एसटीपी करोगे, राइट. अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है सर, इसके बाद क्या आता है? अब यहाँ मान लो यहाँ चलो दोनों 1.25 के ऊपर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सट्रीमली अनफेवरेबल है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? नो, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन नाउ? चलो आप सब लोगों ने डिसाइड कर दिया कि एसटीपी करना है. अब इसके बाद क्या आएगा? अनूप सर, मनीष सर, कितने महीने के लिए करना है, कितना टाइम बहुत बढ़िया कि मुझे एसटीपी कब तक करना है और मुझे एसटीपी को कब स्टॉप करना है. नाउ इन डेटा साइंस देयर इज नो स्कोप फॉर नरेटिव, देयर इज नो स्कोप फॉर अ गट एंड देयर इज नो स्कोप फॉर अ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. यहां पे कोई अपना गट, एक्सपीरियंस और नॉलेज यूज करके कोई प्री डिटरमाइन नहीं करेगा कि 6 महीने ही करनी, कि 9 महीने ही करनी, कि 18 महीने ही करनी है. ये 6 महीना, 9 महीने, 18 महीने जो हमको इंडस्ट्री ने सिखाया है एक्चुअली डजंट वर्क. अगेन लेट मी रिपीट यू, 6 मंथ, 18 मंथ, 9 मंथ, 24 मंथ की जो एसटीपी हमको इंडस्ट्री ने सिखाया है, इट एक्चुअली डजंट वर्क. तो यहाँ पे डेटा साइंस में जो भी आपके जो आंसर्स होंगे वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगे और बहुत स्पेसिफिक होंगे. नाउ आपने स्टार्ट कर दिया, मान लो यहाँ पे आपको एसटीपी करनी है, राइट. वसीम सर प्लीज स्क्रिप्ट करना बंद कीजिए. अब ये एसटीपी को आपको क्लोज करनी, तो हम कब कब क्लोज करेंगे? आप 0 का वेट करोगे. नाउ 0 आ गया यहाँ पे, तो कोई प्री डिटरमाइंड पीरियड नहीं होता कि कब हमें एसटीपी बंद करनी है. यहाँ पे 0 आ गया. अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए आपको दिया, आपने मेरी एसटीपी कर दी जनवरी से. अब मेरे जितना भी आप एसटीपी रन कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे सर? उस एसटीपी को 0 आ गया है. मार्केट में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सट्रीमली फेवरेबल है, मेरे फेवर में, क्या करोगे आप यहाँ पे? लमसम डाल. पूरे के पूरे पैसे को मैं यहाँ पे Switch लमसम कर में दें. कन्वर्ट कर दूंगा, राइट. क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मेरा फेवर हो गया, पूरा मेरे फेवर में आ गया, 0 में आ गया यहाँ पे. अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ 5 लाख रुपीस ला के दे रहा हूँ मिड 2004 में, अब मेरा एसटीपी करोगे कि लमसम डालोगे सर? मेरा आप एसटीपी लमसम करोगे करेंगे. कि लमसम डालोगे? लमसम ही डालेंगे. लमसम. लमसम ही डालोगे, राइट. बराबर. Now whatever we will evaluate on the business score. मुझे मार्केट के लेवल, न्यूज इवेंट से कोई मतलब नहीं. अब 1800 का मार्केट 1500 क्यों हो गया? निफ्टी ये मंथ एंड का फिगर है. 1800 का निफ्टी 1500 क्यों हो गया, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है. जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वहां यहाँ के बेसिस पे ले. 25% अगर मार्केट 3 महीने में गिरा है तो कोई ना कोई न्यूज और इवेंट के कारण गिरा होगा सर. यस और नो? यस. अगर वो गिरा तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बस 012 देख रहा हूं. अब अगर मान लो फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर एंड फॉर द सेट ऑफ इन्वेस्टर जो बहुत न्यूज इवेंट देखते हैं, जो मार्केट आउटलुक रेगुलर पढ़ते रहते हैं कि क्या नैरेटिव है, लोग क्या बोल रहे हैं, वो यहाँ पे न्यूज देख रहे होते हैं, तो मार्केट के लेवल में पैसे डाल पाते क्या? नहीं डाल पाते, राइट. और ये अगर 1400 का मार्केट एक साल के अंदर 2600 हो जा रहा है, जो 1400 में मार्केट में पैसा नहीं डाल पाया वो 2600 में डाल पाएगा क्या सर? यस और नो? मार्केट एक साल के अंदर डबल हो जा रहा है, मार्केट में पैसे डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा. कर सकता है. नहीं डाल पाएगा. जो 1400 में डाल नहीं पाया, he has become a chicken hearted because of the news and event. एक साल के अंदर आप बताओ, 50 साल में आप मार्केट में पैसा नहीं डाल पाए, आपके पास पैसा था और एक साल में 1 लाख हो जाता है, आप कॉन्फिडेंटली डालोगे कि डर डर के डालोगे? कॉन्फिडेंटली. मैम डर डर के डालोगे. बस अगर मैं मार्केट के, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर learning here कि whatever decision we will take in data science, it will never be on the basis of market level. मार्केट के लेवल से कोई मतलब ही नहीं है. अगर ये 2600 के मार्केट लेवल में अगर आपको 0 दिख रहा है स्कोर, व्हाट डज दैट मीन? गोपाल सर प्लीज स्क्रिप्ट मत कीजिए. अगर मुझे 2600 के मार्केट लेवल में अगर ये 0 दिख रहा है तो आप मार्केट में लमसम डालोगे कि एसटीपी डालोगे? लमसम डलेगा. लमसम ही डलेगा. लमसम डलेगा, राइट. तो पहली चीज हम ये सीख रहे हैं, मार्केट के लेवल के बेसिस पे कोई लमसम एसटीपी का गाइडेंस नहीं होता है. एक समय 1800 के मार्केट लेवल में बोल रहा था कि अब एसटीपी कर दो, और एक समय अगर आप वो मिस कर दिए हो तो 2600 के मार्केट के लेवल में बोल रहा है कि अब लमसम डाल दो. सो व्हाट एवर वी विल डू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट 012 इज टेलिंग यू. नाउ सेकंड चीज आप ये लर्न कर लो,
कि सितंबर 2005 में जो भी डिसीजन लोगे उसमें सितंबर 2004 के स्कोर का कोई मतलब नहीं है, और सितंबर 2005 में आपको ये नहीं मालूम है कि सितंबर 2006 का क्या स्कोर है. सो सेकंड लर्निंग इज दैट whatever assessment we do in data science, it will be totally on the basis of where are we standing. कहां पे आप खड़े हो, जितना भी इवैल्यूएशन यहाँ पे होगा where are we standing के बेसिस पे होगा. अब आप यहाँ पे मान लो लमसम डाल रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप बस इसके बेसिस पे डाल रहे हो कि आज ही जीरो है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सट्रीमली फेवरेबल है, तो मैं एसटीबी नहीं करूंगा, मैं लमसम डालूंगा, और लमसम में कहां मैं ओवरवेट हूंगा, इक्विटी मार्केट में ओवरवेट हूंगा. नाउ आई वांट टू वेट हियर फॉर अ मिनट. कोई डाउट है यहां तक अभी तक? की लर्निंग क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है हाँ बताइए सर. सर, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू तो क्वार्टरली चेंज होती है, हाँ तो सर इसको फिर आप डाटा में कैसे उसको तो करेंगे? सर इसलिए मार्केट बहुत डायनेमिक है, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत डायनेमिक है, कि वो बहुत डायनेमिक कभी 6 भी जा सकती है, लेकिन अपना 012 मोस्टली 012 में ही रहेगा. दैट इज द ब्यूटी. ओके. हाँ सर ये जीरो वाला तो समझ आ रहा है, प्राइस टू अर्निंग में कुछ किसी में माइनस है और किसी में प्लेन है, तो इनमें क्या डिफरेंस रहेगा सर? जीरो मतलब जीरो है सर, माइनस मतलब भी जीरो ही होता है, जीरो right? मतलब जीरो, माइनस से कोई मतलब नहीं है. हाँ माइनस से कोई मतलब नहीं. कुल ओके. मिला के दोनों में से अगर एक भी जीरो है तो मार्केट में आप ओवरवेट हो सकते हो. अगर दोनों ही जीरो मिल गया तो मतलब आपको तो फिर घर भी बेच देना है, आपको लोन मिल सकता है तो बैंक से लोन भी ले लो और मार्केट में पूरा पैसा डाल दो. सर पी का तो सर समझ में आ रहा है, पर जो बुक वैल्यू का जो डाटा है सर उसको इसलिए मैं कैसे बोल रहा हूँ हम- सर, दोनों में से कोई भी एक भी जीरो है तो मार्केट में आप ओवरवेट हो जाओगे. लेकिन मार्केट में निकालते समय आपको ध्यान देना है कि दोनों 1 के ऊपर हो, मतलब आप जब एसटीपी चालू करोगे दोनों 1.25 के आसपास होना चाहिए, और अगर 1.5 दोनों ही आ गए तो वहां से आप कॉशियस हो जाओगे, मतलब आप धीरे धीरे डेट में आ जाओगे. क्लियर है क्या सर? सो Okay. नाउ लेट मी टेक यू इनटू द डेटा जहां पे हाईएस्ट इनफ्लो था मार्केट का. दोनों 1.25 के ऊपर कहां पे आ रहा है, यहां पे 1.25 के ऊपर दोनों आ गए. लेट्स से जुलाई 2007 में. नाउ इफ यू रिमेंबर जुलाई 2007 में जो था, इट हैज द हाईएस्ट इनफ्लो इन द मार्केट. जितना 4 5 6 में पैसा नहीं आया था ना, उतना जुलाई 2007 से लेके जनवरी 2008 तक आया था. जो भी प्रैक्टिस में उस समय होंगे उनको मालूम है. हाईएस्ट इनफ्लो उस समय मार्केट में था जुलाई 2007 से जनवरी 2008. अब बताओ, आप यहां पे अगर मैं 10 लाख रुपए आपको लाके दे रहा हूं, 5 लाख रुपए लाके दे रहा हूं, आप लमसम डालोगे कि एसटीपी करोगे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. टीपी. STP. Should have been STP. एसटीपी. तो राइट, यहां पे एसटीपी करोगे. विड्रॉल शुरू कर देंगे सर. ठीक है सर, विड्रॉल तो अभी दोनों भी 1.5 अभी तक नहीं हुए. ठीक है, अब मान लो अच्छा. दोनों 1.5 के ऊपर यहाँ पे निकल गए. अक्टूबर 2007 में दोनों 1.5 के ऊपर निकल गए. अब मुझे बताओ यहाँ पे एसटीपी आप बंद करोगे कि आप एसटीपी चलने दोगे? नहीं, बंद ही कर देंगे, बंद करेंगे. विड्रॉल चालू कर एसटीपी देंगे. इनफैक्ट बंद कर दोगे, और एसटीपी बंद करके क्या करोगे? विड्रॉल विड्रॉ चालू करके withdraw. धीरे धीरे डेट में Debt. आओगे. डेट में डालेंगे. अब मैं ये चीज, ये बहुत अच्छी बात है सर, आप लोग बोल रहे हो कि डेट में आओगे, बट देयर आर मेनी एडवाइजर जो बोलते हैं आशीष हमारा तो लॉन्ग टर्म का पैसा है तो हम डेट में क्यों आए. सेकेंडली वो ये भी बोलते हैं कि आशीष हमको तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा क्योंकि अगर हम डेट में आएंगे आज के टैक्सेशन के हिसाब से. थर्डली वो बोलते हैं आशीष हमारे पास में 1000 इन्वेस्टर है, कितने लोगों को लेके डेट में आएंगे. तो फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर जो ये कर सकते हैं वो डेट में आएंगे. फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर जो एसटीपी मान लो चालू कर दिए, वो एसटीपी चालू ही रखेंगे. ठीक है, वो डेट में नहीं आएंगे एसटीपी क्लोज करके, तो क्या करेंगे, जीरो का वेट करेंगे. राइट, तब जीरो कहां पे आ रहा है, यहां पे जीरो आ गया. तो यहां पे सारे वो एसटीपी को क्या करेंगे सर, सारे एसटीपी को क्लोज करेंगे और क्या करेंगे, इक्विटी मार्केट में डाल देंगे. स्विच कर देगा लमसम. सम में स्विच कर देंगे. राइट, सर एक क्वेश्चन है सर. बताइए सर. सर ये आप मंथली डाटा कंसीडर कर रहे हैं अभी तो. अब राइट, जैसे अगर हमको डेली डाटा और कुछ मंथली सर डाटा, मनीष सर रहेगा, डेली डेटा भी रहेगा. डेली डेटा हम देते हैं. सॉरी सर, इसको एक मिनट डेली में सर अभी कन्वर्ट. क्विकली नेविगेट करने के लिए मंथली दिखा रहा हूं सर, डेली में हम नहीं कर पाएंगे नहीं तो. ओके, मंथली में ही करना है सर उसको. यस यस, डेली का रहता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको. ओके. मतलब डेली बेसिस पे देख सकते हैं ना हम तो. यस 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 यस, डेफिनेटली. ओके. ठीक है, यहाँ पे भी अब फॉर द सेट एडवाइजर जिनको नहीं निकालना है मार्केट से वो नहीं निकलेंगे, वो एसटीपी कंटिन्यू करते रहेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा इक्विटी मार्केट में एंटर हो जाएंगे. बट फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर जिनको कंसर्न नहीं है कैपिटल गेन टैक्स का, जिनको कंसर्न नहीं है कि लंबे समय का पैसा तो मैं क्यों डेट में जाऊं, वो ऑफकोर्स यहाँ पे पैसा डेट में लेके आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में मार्जिन सेफ्टी क्या है सर, 5% से भी कम हो गई है. सो आज सबको मालूम है कि सब प्राइम क्राइसिस था,
बट यहाँ पे जब अक्टूबर 2007 में आप बैठे हो, अक्टूबर 2007 बैठे हो, इट डजंट नो दैट सबप्राइम क्राइसिस इज गोइंग टू हैपन. It doesn't know. So it doesn't predict the news and event. It doesn't act on news and event. Whatever we will do in data science, it will be least bother about the market level. It will evaluate only and only on the basis of where are we standing. Now everyone knows अक्टूबर 2008 में लाइफ टाइम मार्केट का बॉटम था जो कि 8000 सेंसेक्स था, बट इसको नहीं मालूम है. ये दोनों नेगेटिव हो गया है, दोनों जीरो हो गया है. ये बोल रहा कुल मिला के मार्केट में सर लोन मिल सकता है तो लोन भी ले लो, घर बेच सकते हो तो अपना घर भी बेच दो, कुछ रियल एस्टेट तो वो भी बेच दो, पूरा पूरा मार्केट में पैसा डाल दो. नाउ किसी ने मान लो ये 2600 2800 मिस कर दिया और विद इन 6 मंथ मार्केट अगर 4500 हो जाता है, विद इन 6 मंथ मार्केट अगर 4500 हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल. अगर आपने वो छोड़ भी दिया है रैली, यहां पे जीरो दिख रहा है, आप पैसे डालोगे कि नहीं डालोगे? आप पैसे डालोगे कि नहीं डालना डालोगे? चाहिए सर अभी भी डाल सकते हाँ, तो अभी भी डाल सकते हैं. राइट राइट. सो दैट इज द ब्यूटी. तो मार्केट के लेवल को देख के सर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. आप इस समय चले जाओ और आप इस समय का नैरेटिव निकाल लो, क्योंकि सबसे अच्छी बात नैरेटिव की ये है कि आप 2004 का भी आर्टिकल जाके ढूंढ सकते हो कि इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोल रहा था, मनी कंट्रोल क्या बोल रहा था, उस समय के जो फंड मैनेजर थे उनके फैक्ट शीट में वो मार्केट आउटलुक क्या दे रहे थे, आज भी अवेलेबल है. सबके सब कॉशियस बैठे हुए थे. बट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्कोर जीरो दिख रहा है. यू कैन गो अहेड एंड यू कैन बाय द इक्विटी. जब मार्केट में सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म था तो ये बता रहा है कि मार्केट में इसमें आप निकल जाओ. आप जाके उससे मार्केट की कमेंट्री पढ़ लेना, सारी कमेंट्री बुलिश थी जब ये 2 के स्कोर में था, और जैसे ही 0 के स्कोर में आया सारी कमेंट्री बियरिश हो गई. तो जो वॉरेन बफे बोलते हैं ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी, ये इन्होंने बोल तो बहुत सिंपल ढंग से दे दिया है, लेकिन मालूम कैसे चलेगा कि लोग ग्रीडी और हमको फियरफुल होना है या हम फियरफुल है, अब ग्रीडी होना है. सो दैट इज अ स्कोर जहां पे पूरा मैथमेटिक्स आपको बताएगा कि मैथमेटिक्स के बेसिस पे क्या करना है आपको. क्लियर है क्या सर? क्लियर है? आगे बढ़े हम. सुरेश सर, वासिम सर, मनीष सर, Yes, sir. दिनाज सर, गौरव सर, नीरज सर, नीरज पांड्या सर, पुरुषोत्तम Yeah, सर, yeah, पुरुषोत्तम सर, दिस इज क्लियर? हाँ क्लियर है सर, ठीक है. yeah. क्लियर है. सर. इसमें देखिए जैसे जून 2008 में ये दोनों 0-0 आ गया था 4000 निफ्टी के लेवल पे, हाँ, है ना सर? तो यहाँ के हिसाब से सारा पैसा यहाँ डाल देना चाहिए. अभी भी लमसम डालना है. बड़ा- जब कुल मिला के 28 से छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी डाल देना है पैसा आपको. हाँ ठीक. नहीं इसके पहले का दिखाइए सर थोड़ा सा. नहीं जून अभी 2000 बेसिकली मैं 012 की बात कर रहा हूँ. अभी आप 0.25 में क्या करना है, 0.18 में क्या करना है, अभी उसमें नहीं जा रहे अपन. अभी ब्रॉडली पहले अच्छा, 012 ठीक. देख रहे हैं अपन. ठीक है. ठीक, ओके. हाँ हाँ. मैं डायरेक्टली इसमें आ जा रहा हूं. जैसे मान लीजिए क्यों हम न्यूज और इवेंट भी नहीं देखते, जिनको डेली का चाहिए था मैं उनको दिखा दूंगा. अब 2013 अगस्त में तो ये 0 दिख रहा है, तो आपको पैसा डालना चाहिए. राइट, आपको पैसा डालना चाहिए. अब ये दोनों 0 हो गए, मतलब लोन लेके भी आप डाल दो पैसा यहाँ तो. ठीक है, डालना चाहिए. लोन लेके भी आप पैसा डाल दो ना. आप किसी को नहीं मालूम है 2014 फरवरी में मोदी जी इलेक्ट होने वाला है. अगर मैं पॉलिटिकली कहीं बायस नहीं हूँ, पॉलिटिकली कहीं इंक्लाइंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ. इसको न्यूज और इवेंट से कोई मतलब नहीं है. ये 2013 अगस्त में बोल दिया है कि ये वापिस वैसे ही समय आएगा, लोन मिल जाए तो लोन भी लेके डाल दो पैसा. यहाँ तो मोदी जी का नाम भी नॉमिनेट नहीं हुआ. तो जो लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी की रैली थी, डेटा साइंस में कौन गद्दी में बैठा है, किसका वॉर हो रहा है, किसका किसके साथ वॉर हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है. ये कुल मिला के बोल रहा है यहां से मोदी जी की रैली हो या गांधी जी की रैली हो, रैली होने वाली है, क्योंकि मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सट्रीमली फेवरेबल है. क्लियर है क्या सर? सो विदाउट एनी नैरेटिव आपको बता रहा है जो बता रहा है. सर. ये तो 2012 से दिख रहा है ना उसमें, राइट सर, मैं 2012 आपको से बहुत रैली पहले से शुरू हो इंडिकेट गई. करना वापस चालू कर दिया कि पैसा जी. डालना चालू कर दो. हाँ, नवंबर 12 में 0-0 हो गया. यस, लेकिन वो यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे तो आप जो कुछ होता है सब कुछ बेच बाच के डाल दो, दोनों 0 हो गए. मतलब जब माइनस दिख रहा है हमें, तब हमको उसको दोनों में तो सर आपको कुछ सोचना ही नहीं है. ये हर 4-5 साल में आपको दोनों 0 दिखाएगा. दोनों में. हाँ, नवंबर 12 से भी तो दोनों में 0 दिख रहा है. नहीं सर, यहाँ पे बस एक ही 0 है, एक ही 0. अच्छा, नहीं ये इधर भी तो है, इसमें पी में 0.41 है सर, 0 कहाँ है? 0.41 है. अच्छा, ये 0.0 मतलब होना चाहिए. माइनस दिखना चाहिए सर. माइनस है, 0 दिखना चाहिए. 0.0 कुल मिला के 0.0. अच्छा. जैसे ये 0 है,
0.10 क्या होता है? जीरो ही होता है ऑलमोस्ट, राइट? और पॉइंट 0.36 भी तो है इधर, तो इसमें नहीं। 0.36 है बट ये, हाँ। हाँ, इसलिए तो बोल रहा परचेज कर सकते हो क्योंकि यहाँ जीरो है। यहाँ देखो हम्म। सर, जीरो मतलब समझो सर, 0.00 होता है, 0.3 होता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक सर। अब मैं ये आ जाता हूं, हमको लास्ट 3 साल में क्या लगा, मार्केट में कोविड के अलावा और हमको मौका नहीं मिला पैसा डालने का, राइट? अब मैं आपको इतने सारे जीरो दिखाऊंगा मार्केट के कोविड के बाद में कि आपको यकीन नहीं होगा कि जहां पे मार्केट की कमेंट्री ये सुन रहे थे कि हमको एसटीपी करनी चाहिए या हमको बैलेंस एडवांटेज फंड करनी चाहिए या हमको पैसा मार्केट में हाइब्रिड में लेके जाना चाहिए, बट आपको जीरो दिख रहा था एग्जैक्टली। सो फॉर एन एग्जाम्पल, यहां तो पूरे जीरो था ही था पूरा 2020। अब मैं एक काम दिखाता हूं आपको, 2023 मार्च, जीरो दिख रहा है, 0.00 होता है सर। अब समझ में आ रहा है सर 0.0 क्या होता है? जीरो होता है, राइट? मार्केट ऑल टाइम हाई अप्रोच कर रहा है, 18,000 की तरफ जा रहा है। अब मार्केट में लमसम डालोगे कि एसटीपी करोगे? अब मार्केट में लमसम डालोगे कि एसटीपी करोगे? अब जितने भी वैल्यूएशन इंडेक्सेस मैम निकाल के या सर निकाल के देख लीजिएगा पुराने, ठीक है, क्योंकि सब चीज अवेलेबल है मैन्युफैक्चर के डेटा। कोई भी 2020 मार्च के बाद में ये कभी नहीं बोला कि वैल्यूएशन ग्रीन में, लेकिन आपको 2023 मार्च में भी ये दिख रहा है कि वैल्यूएशन वही है जो 2020 मार्च का था। ऑल दो मार्केट उस समय 7,500 था और अभी मार्केट 18,000 है, बट आपको 18,000 में भी वही जीरो दिख रहा है जो 7,500 में मार्केट में कोविड के समय जीरो दिख रहा था। सो दैट इज द ब्यूटी। हमारे आंखों के सामने से इतने मार्केट के लेवल निकल जाते हैं, हम वो मार्केट के लेवल के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं चलता है कि मार्केट ये ऑल टाइम हाई है कि मार्केट का ये फ्यूचर का ऑल टाइम बॉटम है। आज तो मार्केट का वो ऑल टाइम हाई दिख रहा है, बट फ्यूचर में आप जाके देखोगे तो शायद वो मार्केट का ऑल टाइम बॉटम था। तो ये जो 18,000 था मार्केट का, उस समय आपको ऑल टाइम हाई दिख रहा है, बट ये फ्यूचर का ऑल टाइम बॉटम है, एक्चुअली जीरो है ये। तो सबसे पहला आपका जो रिजल्ट जो जनरेट होगा ना मैम या सर, वो आपका किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा रहे हो उससे जनरेट होगा। ठीक है, आप लमसम डालेंगे, एसटीपी नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, मार्केट ऑल टाइम हाई में आ गया 20,100 ऑल टाइम हाई है, जीरो दिख रहा है, 0.0 मतलब जीरो होता है, राइट? जीरो दिख रहा है। अब यहां पर नेगेटिव क्या चल रहा था इंडस्ट्री में कि आपका पैसा एसटीपी भी बंद हो जाना चाहिए, आपको तो हाइब्रिड के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड सबसे ज्यादा हाईली यहाँ पे प्रोपोगेटेड फंड थे या प्रोमोटेड फंड थे। आप लमसम डालोगे कि एसटीपी करोगे? लमसम लमसम कहां डालोगे? इक्विटी में डालोगे, राइट? यस। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन भी हमने एड्रेस कर दिया कि पहले तो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड आप इक्विटी में डालोगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? सर सॉरी टू इंटरप्ट बीच में, हाँ सर। ये जो अपना मंथली अपन निकाल रहे हैं, हाँ, तो ये पर्टिकुलर जैसे 0.2 है और 0.03, तो ये एवरेज निकला मंथली का क्या? कैसे मतलब डे मंथली का एवरेज, वाइज? अभी मंथली एवरेज में देख रहे हैं सर, अपन अभी डेली नहीं देख रहे हैं विपुल सर। पर डे हो सकता है कि ये मंथ में बहुत ज्यादा वेरिएशन आप हो सकता और है। आप मंथ में आप डेली देखोगे तो और स्पेसिफिक मिल जाएगा आपको ना कैन वी सी अभी किसको मंथली बेसिस, जैसे नवंबर में सर। कैसा मैं था? आपको दिखाऊंगा, वही बोल रहा हूँ सर, प्लीज स्टेप बाय स्टेप जाने दीजिए ना, मेरे को दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए दैट इज ठीक है, ऑलरेडी बाद में। अवेलेबल। मैं अभी दिखा के वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ सर, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। कुल मिला चलेगा, के अगर आप ओके। मंथली भी डिसीजन ले रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप मोटा मोटा ठीक ले रहे हो। डेली देख लो तो ऑफकोर्स आपका असेसमेंट और बेटर हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो अभी चलेगा, छोड़ते हैं, डेली को ओके। छोड़ते हैं सर, डेली में बहुत टाइम चले जाएगा। चलिए चलिए, लीव इट। हाँ, सो आप यहाँ लमसम डालोगे, राइट? सेकंड क्वेश्चन आता है कहाँ डालोगे? इक्विटी में डालोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है सर? थर्ड कितने क्वेश्चन टाइम क्या के आता है? लिए रखना है? हाँ मैम, फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? कितना टाइम पीरियड, कितना दिन नहीं, टाइम रखेंगे? पीरियड नहीं, बस आपको डाल देना है। टाइम पीरियड का हम बाद में देखेंगे, वो तो इन्वेस्टर का टाइम होराइजन, इन्वेस्टर लार्ज कैप रखना है, मिड वो कैप सब बाद रखना में है, स्मॉल declare कैप करेंगे। रखना है। बात की बात है, वो बात की बात है। कैटेगरी सेलेक्ट थर्ड क्वेश्चन ये आता है कौन सी कैटेगरी में मुझे पैसा लेके जाना है, राइट? और मैंने टाइम पीरियड का कोई फिक्स नहीं है। अगर मान लो ये जीरो के बाद में 1.5 साल बाद 1.5 आ जाएगा, तो आपको मालूम है कि ऑटोमेटिकली आपको एसटीबी करना है या मार्केट से निकलना है। हाँ, तो टाइम होराइजन तो बाद में देखेंगे कि इन्वेस्टर का क्या टाइम होराइजन रिस्क प्रोफाइल है। अभी हम ये देख रहे हैं कि आपको करना क्या है जो फ्रेश पैसा आ रहा है उसका। अब इसके बाद हम कहां पे जीरो ढूंढेंगे? इसके बाद हम जो नेक्स्ट जीरो ढूंढेंगे वो ये ढूंढेंगे कि कौन सी कैटेगरी में लेके जाना चाहिए।
तो नेक्स्ट लेवल का जो एडवाइजर का अल्फा जो निकलेगा वो यहां से निकलेगा लमसम इन्वेस्टर के लिए कि पहले तो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर इक्विटी में मुझे ओवरवेट होना है कि अंडरवेट होना है कि न्यूट्रल वेट होना है, एंड थर्ड अगर मुझे ओवरवेट होना है, न्यूट्रल वेट होना है या अंडरवेट होना है तो कौन सी कैटेगरी में ओवरवेट होना है और कौन सी कैटेगरी में मुझे अंडरवेट होना है। अब जो नेक्स्ट लेवल का अल्फा होगा वहां से होगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे डेली के जीरो के कैलकुलेशन दिए हुए। अगर मैं आपको डायरेक्टली 4 जून का दिखाऊं, क्योंकि आपको 4 जून में नहीं मालूम था कौन आने वाला है, क्या रिजल्ट है, क्या होने वाला है, तो मैं आपको जस्ट उसका दैट 4 जून का मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं। पॉइंट 16 है। अभी हमको नहीं मालूम मोदी जी आने वाले कि नहीं आने वाले, ठीक है, ये ईओडी का डेटा है, बट हमने अपने यूजर्स को पहले ही डेटा दे दिया था 12 बजे कि 0.14 का स्कोर है। आज लमसम डालोगे कि एसटीपी करोगे कि हाइब्रिड में डालोगे आप पैसा? लमसम लमसम डालोगे। कहां पे डालोगे लमसम? इक्विटी पे डालोगे। सो अगेन कौन से इन्वायरमेंट के कौन से साइकिल के कौन से जोन में आप किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से जा रहे हो, किस कैटेगरी से जा रहे हो, यहीं से पूरा अल्फा निकलेगा। फंड सिलेक्शन आप छोड़ दो सर, कोई फ्लेक्सी इक्विटी में मान लो, अब मैं उसमें आऊंगा, अब मैं आऊंगा नेक्स्ट लेवल में आऊंगा। सो यहां तक क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर है क्या? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। किसी को अभी का स्कोर देखना है तो अभी का 31 के हिसाब से स्कोर बता देता हूँ। 31 जुलाई के हिसाब से, उसके पहले का अभी लेटेस्ट का स्कोर बाकी यूजर्स के लिए अपडेट हो गया है। तो 31 जुलाई का जो स्कोर जो था, सॉरी 31 जुलाई का जो स्कोर था वो था 0.64 और 0.85। मार्केट में हम 2007 जैसी सिचुएशन में है कि मार्केट में अपसाइड अभी भी है। अब ये नहीं मालूम है कि 0.64 से हम 1.5 जाएंगे कि 0 आएंगे, बट आप एक चीज इस असेसमेंट कर ले रहे हो कि मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड है और अपसाइड क्या है। 31 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है क्या? 0.64 आपका पी का स्कोर है, 0.85 आपका प्राइस टू बुक वैल्यू का स्कोर है। तो कुल मिला के मार्केट में डाउन साइड अभी जो है लिमिटेड है और मार्केट में अभी भी अपसाइड बची हुई है। तो जो लोग भी 2007 जैसा बात कर रहे हैं कि 2007 के मार्केट में आ गए, हम कहीं भी 2007 वाले मार्केट में नहीं है कहीं से भी। क्लियर है क्या? सो हम स्पेसिफिकली चले जाते हैं वर्कशीट में। तो जैसे मैंने बोला था कि हम वैल्यूएशन साइकिल कवर करेंगे, बिजनेस साइकिल कवर करेंगे और कैटेगरी सिलेक्शन कवर करेंगे, और ये तीनों का समेशन देखेंगे एल्गो मास्टर समरी में। तो मैं आ जा रहा हूं आपका वैल्यूएशन साइकिल में। So entire valuation cycle में we are using different kind of matrix and we are using very advanced score. So now what I'm trying to tell you, अगर आप P और प्राइस टू बुक वैल्यू, तो entire ये मेरा पहला डैशबोर्ड है ना, ऐसे मेरे 6 डैशबोर्ड है। पहले डैशबोर्ड में सबने एक ही सिंगल वर्कशीट ही कवर की है जो प्राइस टू का प्राइस टू बुक वैल्यू है। ऐसे हमारे बहुत से मैट्रिक्स है और बहुत से एडवांस स्कोर है। अब आप मुझसे पूछोगे आशीष यहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग का क्या यूज है? जब तक मैं आप लोगों को प्राइस टू और प्राइस टू बुक वैल्यू का बस एक स्कोर दिखा के आपको पूछ रहा था कि इसका इन्फ्रेंस निकालो, इन्फ्रेंस का मतलब इसका सिग्निफिकेंस समझो और मुझे आंसर दो। इट वाज पॉसिबल थ्रू अ ह्यूमन आई टू टेक आउट द इन्फ्रेंस, but if I will give you the 20 matrix and 3 score, that means on a daily basis you will have a 20 matrix and 3 advanced score. Is it possible to take out the inference from a human eye? आप लोग बस देख के inference निकाल सकते हो क्या कि मार्केट में हम सस्ते हैं, महंगे हैं, कि ओवर वैल्यूड है, हमें लमसम डालना है कि एसटीपी डालना, हम निकाल पाओगे क्या इसमें? यस सर। अगर मैं आपको 20 मैट्रिक दे दूं और 3 एडवांस स्कोर दे दूं, अभी तो मैं आपको बस एक स्कोर दिखा रहा था और 2 मैट्रिक का दिखा रहा था। इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू अ ह्यूमन आई, राइट? सो दिस इज वेयर मशीन लर्निंग कम्स इनटू द रोल. इट कैलकुलेट्स विद द हेल्प ऑफ अ एडवांस एल्गोरिथम एंड वो सारा कैलकुलेशन करता है। तो कुल मिला के एआई और एमएल जो है ना, कुल मिला के बजवर्ड है, मतलब ये आप लोग सुन रहे हो 2023 में। सिंपल भाषा में अगर मैं ये बोलूं तो पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे, आज के डेट में सुपर कंप्यूटर्स है। तो अगर मैं आपको 20 मैट्रिक्स दे दूं और 20 मैट्रिक्स के 3 स्कोर दे दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू अ ह्यूमन आई टू टेक आउट द इन्फ्रेंस। तो वहां पे मशीन लर्निंग और हमारे डेटा साइंस के जो एल्गोरिथम है वो काम करते हैं। तो जिनको जा जाके एक एक चीज देखनी है और समझनी है, they can just put a cursor, a description box will get popped up. This will tell you what is the content and how to read that particular content.
तो जीन एडवाइजर को खुद का फ्रेमवर्क बनाना है हमारे एल्गोरिथम के बेसिस पे, तो हम ये सारे सेट ऑफ एडवाइजर को दे रहे हैं, चाहे वो 2000 करोड़ का एडवाइजर हो, चाहे वो 100 करोड़ का एडवाइजर हो, चाहे वो 20 करोड़ का एडवाइजर हो, हम तीनों सेट ऑफ एडवाइजर को दे रहे हैं, एंड वी आर गिविंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म टू द एएमसी आल्सो, सो दे कैन यूज एज अ सप्लीमेंट्री टूल फॉर सेकंड ओपिनियन। तो कई लोगों को लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी चीजें हमको देखना चाहिए क्या, तो जिनको नहीं देखनी है वो डायरेक्टली समरी को कंसीडर कर सकते हैं। So in summary, you will find the both thing. आपको तो जैसे मैं जनरली जैसे मैं एनालॉजी देता हूं कि एमफी 3 तरीके से पास हो सकते हो, एमफी का जो एग्जाम है 3 तरीके से पास हो सकते हो। कई लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, कई लोग बस चैप्टर की समरी पढ़ते हैं, और कई लोग चैप्टर की समरी पढ़ने का भी टाइम नहीं होता तो बस मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। तो मैंने आपको तीनों चीज दी हुई है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट लेवल, your time and your effort, whether you have a time, effort, and you have an interest level or not. You can go and you can see the entire detailed working and underlying rationale, that on what basis this system is giving you the guidance. If you don't have a time, energy, or let's say expertise कि आपको इतना सब कुछ जाके समझना नहीं करना है, you can directly go into the summary and you will have a bird eye view. आपको एक मोटा मोटा complete picture summary से मिल जाएगा। So in summary, each and every summary you will have a unified score. In each and every summary you will have a unified score. मतलब सारे हर एक वर्कबुक में आपको एक सिंगल स्कोर मिलेगा, इन सारे मैट्रिक्स से बना हुआ एक सिंगल स्कोर मिलेगा। So we are transparently giving you कि आप ये स्कोर जाके चाहे अगस्त 2024 का अगस्त 2024 का देख सकते हो, चाहे अगस्त 2004 का जाके अगस्त 2004 का भी देख सकते हो। You have the flexibility according to your desired month and desired year. You can select the date, you can select the month, and you can select the year. So जहां पे भी ड्रॉप डाउन बटन है, मैं आप लोगों को ब्रॉडर नेविगेशन भी इसलिए बता दे रहा हूं, जहां पे भी ड्रॉप डाउन बटन है वहां से जाके आप स्कोर्स देख सकते हो, ठीक है। एंड फ्रॉम अ ब्लू पार्ट, अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए आप लोगों को ध्यान है, बट अगर आप लोग भूल जाते हो और बाद में अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अगर देखते हो, फ्रॉम अ ब्लू पार्ट जस्ट पुट अ कर्सर ऑन द हेडलाइन। फ्रॉम दैट कर्सर जो हेडलाइन खुलेगी आपकी, वो आपको बता देगा हाउ टू रीड दैट करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल विजुअलाइजेशन। नीचे की जो करस्पॉन्डिंग ग्राफिकल विजुअलाइजेशन है, इसको पढ़ना कैसे, ये जैसे आप कर्सर रखो ये आपको समझा देगा। सो येलो से आप अपने ईयर और मंथ चेंज कर सकते हो, हेडलाइन में कर्सर रख के आप नीचे वाली चीज को पढ़ना कैसे ये आप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को पढ़ना ही सिखाता हूं। सो दिस इज द यूनिफाइड स्कोर, मेरा ये एंटायर वैल्यूएशन साइकिल का सिंगल स्कोर है। तो उसको आप देखोगे डिफरेंट कलर है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज, लाइट रेड, डार्क रेड, और लेफ्ट हैंड साइड में ब्रॉडर इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है कि ब्रॉडर इन्फ्लुएंस क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। तो फॉर एग्जांपल ये मर्क्यूरी लाइन अभी कहां एंड हो रही है, अगस्त की ग्रीन में एंड हो रही है। तो मोटा मोटा आज भी अगर जो पैसा आ रहा है, अभी मैं ना अगेन इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इसमें टोटली मार्केट के रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से हम कंसीडर कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो आज भी बोल रहा है कि अगर पैसा आ रहा है तो आपको ओवरवेट इक्विटी होना चाहिए। ये मर्क्यूरी लाइन देखो कहां पे एंड हो रही है, ग्रीन में ही एंड हो रही है। अब ये देखो सेम स्कोर है 5.65, 5.65। नाउ दिस इज फॉर टू सेट ऑफ एडवाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर who want to enter also, who want to exit also, मतलब वो फेवरेबल जोन में पैसा डालेंगे भी और अनफेवरेबल जोन में पैसा निकालेंगे भी। तो हमारे पास तो दोनों सेट ऑफ एडवाइजर है, ठीक है, जिनको पैसा डालना भी है, जिनको पैसा निकालना भी है। कुछ अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर चाहते हैं कि जब भी अनफेवरेबल जोन हो तो हमारा पैसा निकाल भी देना, हमारे रातों की नींद खराब मत करना कि हमारा 5 करोड़ रुपए मान लो 3 करोड़ बन गया मार्केट गिरने के कारण। तो ये उन एडवाइजर के लिए। फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर आप देखोगे सेम स्कोर है 5.65, 5.65। दिस इज फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर। भले वो पैसा हमेशा ग्रीन और येलो जोन में रखेंगे, बट रेड जोन में वो पैसा पुराना पैसा निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे पुराना पैसा? कई एडवाइजर बोलते हैं सर मेरे तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, मेरा पैसा 8-10 साल का है तो मैं क्यों निकालूं। या तीसरे कई लोग बोलते हैं सर मेरे 500 इन्वेस्टर्स में कितने लोगों का पैसा निकाल लूंगा जा जाके। तो उन सेट ऑफ एडवाइजर के लिए ये बना हुआ है सेम, भले आप पैसा मत निकालो बट फ्रेश पैसा यहाँ पे डालना बंद कर दो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, भले आप ये पुराना पैसा मत निकालो बट फ्रेश पैसा भी यहाँ पे डालना बंद कर दोगे। तो सेम चीज है बट 2 कलर है, यहाँ पे आपको मल्टी कलर मिल रहा है, यहाँ पे आपको बस 3 कलर मिल रहा है। तो सिमिलरली ये पूरा वैल्यूएशन साइकिल हमारा, वैल्यूएशन साइकिल का डिस्टिल स्कोर, ये पूरा एंटायर हमारा इस डैशबोर्ड से बना हुआ है। होम में जाओगे तो आपको डैशबोर्ड पे चले जाओगे, कहीं पे भी आप कहीं से भी खोले बस आप मेन मेन्यू या ये बताओ ना, आप चले जाओगे और जिस भी वर्कशीट के अंदर घुसनी है जस्ट उसको आप क्लिक करो, आप घुस सकते हो।
और हर जगह आपको रेनबो कलर कोडिंग दिखेगी इस तरीके की। जो जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो जा जाके पूरे डेटा को स्टडी कर सकते हैं। बट बेसिकली हमने फंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, तो फंड मैनेजर जनरली कीन रहते हैं इतने सारे डेटा को स्टडी करने के लिए। अगर आपको नहीं करना है तो डायरेक्टली आप समरी में चले जाओ और ये डेटा से आपको ब्रॉडर इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। तो वैसे ही वी से कि वी डोंट गेट अ कंप्लीट पिक्चर बाय स्टडीइंग अ वैल्यूएशन साइकिल, वी गेट अ कंप्लीट पिक्चर ओनली बाय स्टडीइंग अ business cycle also. So we have to look at the earning cycle also along with the valuation cycle. हम earning cycle में कहाँ खड़े हैं? तो earning cycle भी आपको क्या बोल रहा है? हम green में खड़े हैं। So again for the set of advisor जिनको enter होना exit होना, earning cycle क्या बोल रहा है? हम green में। We can still overweight into equity. For the set of advisor जो भले निकलेंगे नहीं, पैसा निकालेंगे नहीं, उनके लिए भी आज भी बोल रहा है कि पूरा का पूरा पैसा आपको मार्केट में रखना है। मतलब sell everything, take a loan, buy equity। आज भी वही सिचुएशन है कि पूरा का पूरा पैसा डाल सकते हो इक्विटी में, कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी मैं जितना भी आपको असेसमेंट दे रहा हूं, जितना भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, एडवोकेसी दे रहा हूं, मतलब इस फ्रेमवर्क के बेसिस में, इसमें कहीं पे भी इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अभी कंसीडर नहीं है। ठीक है, अब गोइंग फॉरवर्ड इस गाइडेंस को हम इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल से भी इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इन्वेस्टर लमसम डालना चाह रहा है, इन्वेस्टर को एसडब्ल्यूपी चाहिए, इन्वेस्टर को एसआईपी चाहिए, इन्वेस्टर किस मोड के थ्रू आना चाह रहा है, इन्वेस्टर एग्रेसिव है, इन्वेस्टर मॉडरेट है, इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है, ये सब चीज हम अब बाद में देखेंगे। सो मेरा वैल्यूएशन साइकिल का डिफरेंट स्कोर है, मेरा बिजनेस साइकिल का डिफरेंट स्कोर है। अगर मेरा बिजनेस साइकिल किससे बना है तो हम सेकंड डैशबोर्ड में आ जाते हैं। सर हाँ सर बताइए। इससे तो हमारी सारी पुरानी जो धारणाएं हैं कि लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, 20 साल तक का इन्वेस्टर है, हाँ तो ये सारी तो टूट गई सब एकदम से, चकनाचूर हो जाए। छुट्टी नहीं है सर। सो आप आ रहे हो सेकंड वाले इसमें। हाँ मतलब तो आप नहीं, इसका- हम अगर आप बार-बार भले आप निकलना- भले लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखो, बट याद रखना जिस दिन रेड जोन आएगा उस दिन आप पैसा प्लीज मत डालना, भले मत निकालो पुराना पैसा। तो आज भी हम रेड जोन से कुल मिला के डिफरेंट है। कुल मिला के सर अगर आप हमने स्टडी किया, अगर आप रेड जोन में पैसा डाल दोगे, भले आपका 10 साल का टाइम होराइजन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लोअर सिंगल डिजिट रिटर्न इज हायर। जी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन रेड जोन और भले ही आप 10 साल के लिए डाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग लोअर सिंगल डिजिट रिटर्न इज हायर। मतलब आप जो 12% से 15% से प्रोजेक्शन करते हो ना, अगर आपने रेड जोन में पैसा डाल दिया तो 6 से 7% का हायर प्रोबेबिलिटी की पैसा बनेगा आपका। क्लियर है क्या सर? जी ठीक है, तो धारणा एकदम वैसी रखो सर। बस आपके पास में एक एक्स्ट्रा टूल और आ जा रहा है जो आपको गलतियां करने से बचाएगा। जी। तो इट इज नॉट अगेन अबाउट फंड सिलेक्शन, इट इज ऑल अबाउट किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, कौन से एसेट क्लास में जा रहे हो, कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो। तो पहला क्लियर हो गया, अब इसके बाद हम कैटेगरी में जाएंगे। तो ये मेरा वैल्यूएशन साइकिल है एंड सेकंड मेरा फिर ये बिजनेस साइकिल से बना है, ये भी अभी भी ग्रीन में। तो जो लोग बोलते हैं कि मार्केट बहुत महंगा है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी कोई तकलीफ नहीं है मार्केट में। कुल मिला के मार्केट वैसा कोई 2007 जैसा नहीं है आज भी। तो मेरा बिजनेस साइकिल जो बना है ये मेरे बिजनेस साइकिल के वर्कबुक से बना है। तो मेरा बिजनेस साइकिल का वर्कबुक इस तरीके से दिखेगा। So as I have told you, my each and every dashboard will have 3 color. That will be green color, blue color and a orange color. तो ये मेरा जो बिजनेस साइकिल का जो डिस्टिंक्ट स्कोर बना है, सिंगल डिस्टिंक्ट स्कोर, वो सारा इस वर्कबुक से बना है। तो अगेन आपको एक एक जाके पढ़ना है, आरओई के बारे में पढ़ना है कि मार्केट का आरओई क्या चल रहा है, मार्केट का ईपीएस ग्रोथ का आपको स्कोर पढ़ना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी जाके देखनी है। ये सारी चीजों को कंसीडर करके आपको समरी में दे रहा है सिंगल स्कोर, सिंगल यूनिफाइड स्कोर। और लेफ्ट हैंड साइड में इसका इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है कलर के वजह से। तो ये आपको पूरा ब्रॉडर गाइडेंस मिल गया। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक गाइडेंस इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल को लेके। तो सर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एसेट क्लासेस का और कैटेगरी का रिस्क प्रोफाइलिंग का करना हमारा जॉब है, इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग करना आपका जॉब है, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टर से मिलते हो, इससे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग आप लोग करोगे और आके फिर मेरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आके आप बताओगे कि आपके इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है। तो अब हम जा रहे हैं आज के सेशन के ये वाले पार्ट में जहां पे आप एल्गो मास्टर समरी से काम करोगे। तो हमने वैल्यूएशन साइकिल, बिजनेस साइकिल कवर कर दिया, कैटेगरी सिलेक्शन भी मैं एल्गो मास्टर समरी से आपका कवर कर दूंगा। आज बस हम इतना ही कवर कर रहे हैं। मरीना को हम बाद में देखेंगे, ग्लोबल मार्केट, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, कौन से ग्लोबल मार्केट में जाना चाहिए, कौन से स्टाइल में जाना चाहिए, इसका मतलब कब वैल्यू बनाना चाहिए, कब क्वालिटी में बनाना चाहिए, ये सब हम डिफरेंट सेशन में कवर करेंगे। आज बस हम इतना ही कवर कर रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें लर्न कर लो।
जिन लोगों को भी रिविजिट भी करना होगा, रिवाइज भी करना होगा, मैं आज का वीडियो रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा। और अगेन मैं आज रिपीट कर रहा हूं, मैं आज मूल्यांकन जीपीटी कवर नहीं कर रहा हूं। मूल्यांकन जीपीटी इज द नेक्स्ट गेम चेंजर। जिनको ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्टली आप मूल्यांकन जीपीटी में जाओ, बस क्वेश्चन लिखो, वो हमारे डैशबोर्ड में घुसेगा, सारे एनालिटिक्स को डिप्लॉय करेगा और आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक आंसर दे देगा। क्लियर है क्या सर? कितने लोग मूल्यांकन जीपीटी हमारा नहीं देखे? मेरे ख्याल से मोस्टली लोग ने मूल्यांकन जीपीटी हमारे देख चुके हैं। तो मूल्यांकन जीपीटी का जो सेशन है वो हम डिफरेंट करेंगे, अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी इसका वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों से शेयर कर चुका है। तो प्लीज अपने व्हाट्सएप में देखिएगा मूल्यांकन जीपीटी का। जिनको नहीं आया प्लीज मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं ट्यूटोरियल का शेयर कर दूंगा। आज हम बस डैशबोर्ड कवर कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं एल्गो मास्टर समरी में। तो मैंने जैसे कि बोला, 3 तरीके से सर आप लोग एचपी का एग्जाम पास हो सकते हो। या तो चैप्टर पढ़ो, या तो चैप्टर की समरी पढ़ो, या तो समरी भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ो। तो एल्गो मास्टर समरी जो है ना, हमारा मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। अब मुझे ये बताओ कि मान लो आप मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी नहीं पढ़ते हो, तो चौथा तरीका क्या होता है एमफी एग्जाम पास करने का? चौथा कौन सा तरीका होता है? चौथा कौन सा तरीका होता है एमफी एग्जाम पास करने का? रिफ्रेशर कोर्स होता है, राइट? तो रिफ्रेशर कोर्स हमारा मूल्यांकन जीपीटी है, जिसको कोई टाइम ही नहीं है कि कोई वर्किंग देखे, क्या स्कोर चल रहा है, क्या एनालिटिक्स है, क्या कलर है, किस कलर में है, किसी को ये सब टाइम ही नहीं है। तो डायरेक्टली हमारे मूल्यांकन जीपीटी में चले जाएगा, बस वहां क्वेश्चन लिखेगा, सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अगेन मैं उस चीज पे नहीं आ रहा, आज मैं मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर तक ही लिमिट रह रहा हूं। तो मैं मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर यहां पे खोल देता हूं, एल्गो मास्टर समरी का। तो पहला गाइडेंस जो आपको चाहिए, मान लीजिए ये चाहिए कि ब्रॉडर गाइडेंस आज लमसम डालें कि एसटीबी करें, तो आप इसको क्लिक कर देना। और मैं अगस्त 2024 के हिसाब से बोलता हूँ। ये बोल रहा है कि जो भी आज पैसा आ रहा है, ठीक है, अभी नो प्रोफाइल है ना सर, अभी इसको ये नहीं मालूम है कि एग्रेसिव है कि मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है, कितने साल का टाइम होराइजन है, क्या गोल है। अभी बेसिकली बस आप इसके पास आ रहे हो, बोल रहे हो कि 10 लाख रुपए डालना है, मेरे जैसा इन्वेस्टर कि 10 लाख रुपए डालना है, मेरा कोई फिक्स गोल नहीं है, कोई फिक्स टाइम होराइजन नहीं, क्या करना चाहिए? तो बोल रहा आधा पैसा इक्विटी में डाल दो और आधे पैसे का क्या करो, एसटीपी रन कर दो। क्लियर है क्या सर? किसी ने एसटीपी बंद करनी होगी, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। सेम अगस्त 2024 की जगह मान लो इसको मैं अगस्त 2021 कर देता हूं, तभी भी ये बोल रहा है कि एसटीपी करो, आधा पैसा मार्केट में डाल दो, आधा पैसा एसटीपी करो। अब मैं सेम अगस्त 2000 की अगस्त इसकी जगह लेट्स से मार्च 2022 कर देता हूं। तो क्या बोल रहा है, जो भी पैसा आ रहा है पूरे का एसटीपी करो। तो आप जाके पीछे का भी इसका पूरा एडवाइस देख सकते हो। जिनको इंटरेस्ट नहीं है इसकी स्कोर्स क्या है, क्या चीजें, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि स्कोर्स वाली चीज हमारे ऑलरेडी इन डैशबोर्ड में दी हुई है, ठीक है, वैल्यूएशन साइकिल, उसमें आप जाके पीछे के पूरे स्कोर्स आप स्टडी कर सकते हो। जिनको नहीं है, जिनको डायरेक्टली गाइडेंस चाहिए, तो यहां से गाइडेंस ले रहे हैं। तो मार्च 2022 में बोल रहा है कि पूरे के पूरे अमाउंट की एसटीपी कर दो। अब जैसे मैंने की बोला कि इसका कोई चीज ये स्पेसिफिक नहीं रहता कि 6 महीना, 9 महीना, 18 महीना, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देता है किसी ने एसटीपी क्लोज करनी है। अब मैं सेम चीज, क्योंकि मुझे याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेम चीज मैं जून 2022 कर देता हूँ। तो क्या बोल रहा है, ओनली इक्विटी, मतलब पूरे के पूरे एसटीपी को कन्वर्ट कर दो और पूरा पैसा इक्विटी, या कोई भी फ्रेश पैसा आ रहा है तो पूरा का पूरा उस पैसे को इक्विटी में डाल दो। नाउ द ब्यूटी इज, लास्ट जून 2022 में इसने जो इक्विटी बोला, उसके बाद में ये ओनली इक्विटी बोलता ही रहा। जहां पे पूरी इंडस्ट्री बाद में एसटीपी में आ गई थी, ये इक्विटी ही बोलता रहा। जून 2023 में आ गया, इक्विटी ही बोल रहा है। जून 2024 में आ जाता हूं, इक्विटी ही बोल रहा है। मतलब हो सकता है कि 2-2 साल तक इसका एडवाइस चेंज ना हो। सो दैट्स व्हाई वी आर प्लेसिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एज अ 3 ईयर एंड अ 5 ईयर। अब तो 3 ईयर भी कंप्लीट हो गया है, 5 ईयर एंड 6 ईयर के हिसाब से हम इसको प्लेस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को। तो जो पिछले जून 2022 से ही सजेशन देना चालू किया कि आपको इक्विटी के अलावा कहीं नहीं जाना है, ये अभी तक वही बोलता रहा। अब अगस्त में आके ये बोल रहा है कि इसको अगर नहीं मालूम है कि इन्वेस्टर एग्रेसिव है, मॉडरेट है, कंजर्वेटिव, अब इसको नहीं मालूम है, ठीक है, तो अब जाके आधा पैसा इक्विटी में डालो और आधे पैसे का एसटीपी रन कर दो। अब जिस दिन एसटीपी क्लोज करनी होगी बता देगा, बट कई लोगों का आंसर चाहिए होता है, आशीष कब एसटीपी क्लोज करनी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। नेक्स्ट एसटीपी जो क्लोज करके हम तो डे इन डे आउट रह रहे हैं, मोटा मोटा 23,900 के मार्केट में एसटीपी क्लोज करने बोल देगा। लेकिन याद रखना, आज भी वैल्यूएशन साइकिल और बिजनेस साइकिल ग्रीन में, ठीक है। तो हम
प्रोफाइलिंग के वजह से बाद में जाएंगे, अभी यहाँ पे प्रोफाइलिंग के हिसाब से आंसर नहीं दे रहा है, एग्रेसिवली क्या करना है, मॉडरेटली क्या करना है, तो प्रोफाइलिंग की वजह से बाद में जाएंगे। आज भी एग्रेसिव इन्वेस्टर का ये बोल रहा है कि एसटीपी रन नहीं करनी है, पूरा का पूरा पैसा आप एक बार में मार्केट में डाल दो, तो अभी ये विदाउट एनी प्रोफाइल अभी ये आंसर दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ब्लू कलर का है ये विदाउट एनी प्रोफाइल है, और राइट हैंड साइड में सब प्रोफाइल से रिलेटेड है। तो पहले हमने ये सीखा कि हाउ वी कैन टेक अ डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ एसेट क्लास। तो आज तक आप लोग रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ इन्वेस्टर करते थे, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते थे। पहली बार आप ये सीख रहे हो कि एसेट क्लास के रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे कैसे हमें डिसीजन लेना है। तो ये पूरा इंटायर जो है ये ब्लू में, और राइट में जो ग्रीन में है ये आपको बता रहा है रिस्क प्रोफाइल को एसेट क्लास के रिस्क प्रोफाइल से इंटीग्रेट करके कैसे डिसीजन लेना। अगेन इंटीग्रेशन करना सब कुछ ये मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम का काम है, आपको ये डायरेक्टली गाइडेंस दे देगा यहाँ पे सारे टास्क में। तो उसमें 1 बाय 1 जाऊंगा, पहले मैं ब्लू वाला कवर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकना चाहूंगा। क्लियर है कि यहाँ तक सबको क्लियर है कि चीजें हमने अभी तक जो कवर किया, रिस्क प्रोफाइलिंग को एसेट क्लास कवर किया विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ इन्वेस्टर। वो एग्रेसिव है, मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, लमसम डालना चाह रहा है, एसडब्ल्यूपी डालना चाह रहा है, एसआईपी डालना चाह रहा है, ये सब हमको मालूम ही नहीं है। अभी हम ब्रॉडर गाइडेंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं पहले। तो क्लियर है क्या? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट यहां से। एनी क्वेश्चन? मनीष सर, वासिम सर, अनूप श्रीवास्तव सर, अरिंदम सर, नागा सर, गौरव ललवानी सर, दिनार सर, नीरज पांड्या सर, स्वास्तिक सर, विपुल सर, नागराजू सर। सर हमको डेली Go on, Ash. Shall I proceed? I think this is Yeah, please go on, please go on. okay. Thank you, perfect, sir. Pretty interesting, but heavy on inputs. Right, sir. Great So I'm not- great insights, but sir, looking you have forward the to using it. time to at your ease, whenever you feel free, like you can go and you can navigate each and everything. I'm just covering the point which is the most important thing. कि at least ये तो आपको करना है। Sure. ठीक। Sure. So now let's say broader guidance. अभी इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं देख रहे, let's say क्या broader guidance दे रहा है, need broader guidance on equity and debt allocation. ठीक है? So according to your desired year, you can see the score and you can see the answer. So ये आपको अगस्त 2024 का बोल दिया कि अभी भी हम ग्रीन में। This is for the set of advisor who want to enter also, who want to exit also। उसको बोल रहा है अभी आप ओवरवेट इक्विटी में रह सकते हो। एक्शन जोन में भी ये बोल रहा है कि आप ओवरवेट इक्विटी में रह सकते हो। ठीक है, ये वैल्यूएशन साइकिल का हो गया। अगेन राइट हैंड साइड में बिजनेस साइकिल का भी ये बोल रहा है। अब राइट हैंड साइड में और फर्दर जाओगे तो सारा कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा है ब्रॉडर गाइडेंस ना, अगेन विदाउट एनी कंसीडरिंग इनटू रिस्क प्रोफाइल कि 100 रुपीज में जो भी आ रहा है आज 60 रुपीज आप इक्विटी में डाल दो, 40 रुपीज डेट में डाल दो। क्लियर है क्या? नाउ यू विल हैव द स्कोर आल्सो, यू विल हैव द इन्फ्लुएंस आल्सो कि ब्रॉडर इन्फ्लुएंस क्या लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन मशीन आपको सारी चीजें, सारे वर्कबुक को कैलकुलेट करके ये भी बता दे रहा है कि आज जो 100 रुपीज आ रहा है मोटा मोटा उसमें 60 रुपीज इक्विटी में डालो, 40 रुपीज डेट में डालो। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि 60 रुपीज इक्विटी में मुझे कहां डालना है और 40 रुपीज डेट में कहां डालना है, राइट? तो ऑफिस में होम में जाऊंगा और मैं चले जाऊंगा विच कैटेगरी टू सिलेक्ट अंडर इक्विटी एंड डेट। तो यहां से मुझे पहले ब्रॉडर एलोकेशन मिल गया एंड दैट टू ऑन अ बेस ऑफ अ ब्रॉडर गाइडेंस। नाउ विच कैटेगरी टू सिलेक्ट अंडर इक्विटी एंड डेट, तो अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा। तो अगेन मुझे पहले ब्रॉडर गाइडेंस देगा। डेट का जो स्कोर है कहां पे आ रहा है, ये येलो लाइन के मिड में एंड हो रहा है। डेट का जो स्कोर है ये येलो लाइन के मिड में एंड हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, आपको जो डेट का जो एलोकेशन करना है वो 2.5 ईयर के मॉडिफाइड ड्यूरेशन में करना है। वॉट एवर डेट you will do today, it will be on the basis of 2.5 year modified duration. Whoever don't understand 2.5 year modified duration, उनको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, बट whoever understand उनको ये एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि 0.53 is entering into येलो के मिड जोन में, you should be into 2.5 year modified duration के फंड में। Now let's say rather than August 2024, if you want a guidance for August 2021, so you can go and you can transparently see here what are the score and what are the influence। तो आप देखोगे स्कोर क्या है, रेड में घुस चुका है। Now the beauty is कि in equity you can take the risk in 012 में 1 में आप रिस्क ले सकते हो। क्यों रिस्क ले सकते हो? अगर आपका मान लो टाइम होराइजन 15 साल का है, बट डेट में पैसा ही इसलिए आता है क्योंकि आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन करना है, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करना है, राइट? तो
तो डेट में कभी भी आप 1.16 में रिस्क लोगे क्या? कभी भी डेट में 1.16 में रिस्क लोगे क्या सर? नहीं लोगे, राइट? तो क्या बोल रहा है, अगस्त 2021 में इंडस्ट्री में जो नरेटिव चल रहा था कि आपको अगस्त 2021 का कोई मेरे को नरेटिव बताएगा कि नरेटिव क्या था अगस्त 2021 का? कैन समवन टेल मी द नरेटिव? यही कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से बहुत गिर जाएंगे, नेगेटिव हो Right. जाएंगे, ऐसा कुछ था। राइट, इंटरेस्ट रेट यहां से गिर जाएंगे, गोइंग फॉरवर्ड तो यूएस में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाएंगे। तो मोर ओवर जो नरेटिव आ रहा था कि आप हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में रहो, मतलब हायर वाईटी में रहो। किसी भी ब्रांच में जाता आप एफडी कराने के लिए, तो ब्रांच मैनेजर ये बोलता कि सर आज तो आप 6 साल की 4.5% की एफडी करा लो, आने वाले समय तो 5 साल की एफडी 2% की भी नहीं मिलेगी। ये नरेटिव वही तो कह रहे हो सर, सही सर, वही तो कह रहा हूँ मैं, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, ऐसा नेगेटिव था, राइट वही राइट। कह रहा हूँ। बट ये आपको क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट साइकिल में रिस्क में, तो मार्केट में जब रेड में रहते हैं तो मार्केट में गिरावट की बात होती है, बट इंटरेस्ट रेट में जब रेड में रहते हैं इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट यहां से चढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट साइकिल में क्या रिस्क है? इंटरेस्ट रेट में जब ये आप लोगों को, मेरे ख्याल से सबको थ्योरम मालूम होगा, राइजिंग इंटरेस्ट रेट में फॉलिंग बॉन्ड प्राइसेस होता है और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में राइजिंग बॉन्ड प्राइसेस होता है, राइट? सो इंटरेस्ट रेट का रिस्क जो होता है वो उल्टा होता है। इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट यू विल हैव अ फॉलिंग बॉन्ड प्राइसेस। तो अगर फॉलिंग बॉन्ड प्राइसेस होने वाला है तो आप हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में रहोगे, लोअर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में रहोगे? तो इट इज टेलिंग यू कि आपको लोअर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो इट इज टेलिंग यू एग्जैक्टली अगेंस्ट द नैरेटिव। अगर मैं यही अगस्त 2021 की जगह लेट से अगस्त 2022 कर देता हूं, स्कोर कहां पे आ गया? ऑलमोस्ट नीचे में ग्रीन की तरफ में आ गया। आप हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में रहोगे कि लोअर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड में रहोगे? सो दैट इज द ब्यूटी। अब जिनको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो राइट हैंड साइड से ब्रॉडर गाइडेंस आपको दे रहा है कि अब जो भी अब डेट का पैसा लेके आना है, 30 रुपए लॉन्ग टर्म डेट में रखना है और 70 रुपीज आपको शॉर्ट टर्म डेट में रखना है। क्लियर है क्या सर? सो यू कैन चेक दिस अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड मंथ एंड डिजायर्ड ईयर। अब मैं इसको वापिस मान लीजिए अप्रैल 2023 कर देता हूं, अप्रैल 2023 कर देता हूं, तो देखिए स्कोर क्या है, तभी भी ग्रीन की तरफ है, मतलब आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में अभी 30% लेके जा सकते हो पैसा। तो इस तरीके से ही आपको ब्रॉडर भी दे रहा है कि ब्रॉडर क्या एलोकेशन होना चाहिए। जिसको इंटरेस्ट है स्कोर्स को देखने को लेके, वो स्कोर्स के हिसाब से आपको एक यहां से भी स्टडी के लिए आपको एक मेजर दे रहा है, एक क्राइटेरिया दे रहा है। अब जिनको ये इंटरेस्ट है कि स्कोर कहां से बना है, तो आप जाओ और फिर पूरा यूएस 10 ईयर, पूरे इंडिया के 10 ईयर जिसे का हमारे सारे स्कोर्स दिए हुए, वहां जाकर डिटेल स्टडी कर लो। तो वी आर ट्रांसपेरेंटली प्रोवाइडिंग यू कि किस एडवाइजर को किस लेवल का इंटरेस्ट है स्टडी करने का। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं, ये हमारा डेट के अंदर का हो गया। सिमिलरली हम इक्विटी के अंदर आ जाते हैं कि अब मुझे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या करना है। सो फॉर एन एग्जांपल आप यहां पे भी चेक कर सकते हो अप्रैल में क्या बोल रहा है, ये अप्रैल के स्कोर क्या है, उसके हिसाब से क्या करना है। तो अप्रैल 2023 में सबसे पहले इसने बोला कि आपको तो लमसम लेके जाना चाहिए पैसा। उसके बाद इसने बोला कि लमसम कहां लेके जाना चाहिए, इक्विटी में लेके जाना। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि इक्विटी में कौन सी ब्रॉडर कैटेगरी में मेरे को लेके जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि 52% आपका पैसा लार्ज कैप में जाएगा एंड 50% पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में जाएगा। अभी डेटा साइज के हिसाब से इतना स्पेसिफिकली बता रहा है 52.5, 25 एंड 22.5। टू बी वेरी फ्रैंक सर, हम ये खुद बना रहे हैं बट खुद हम ये घर के पैसों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते कि इतना स्पेसिफिकली बता रहा है। तो आपके ब्रॉडर गाइडेंस भी दे रहा है कि अगर ये आप स्पेसिफिकली नहीं भी कर पा रहे हो तो ये आपको आइडियल भी बता रहा है कि आइडियली इतना पैसा आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होना चाहिए। अगर अप्रैल में आप कोई पैसा लेके आ रहे हो तो पहले तो आपको ओवरवेट होना है इक्विटी में, फिर आपको मिड एंड स्मॉल कैप में इतना पैसा डालना है। अगर आप ये स्पेसिफिकली नहीं भी कर पा रहे हो, ये आइडियल सिचुएशन है, तो आपको ये ब्रॉडर सिचुएशन भी बता रहा है। तो ब्रॉडर सिचुएशन क्या बता रहा है, अगर आप स्कोर देखोगे तो क्या बोल रहा है, ये 50 और 50 है, ठीक है। अब मान लो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को 600 एडवाइजर यूज कर रहे हो, 600 एडवाइजर अपने 500 इन्वेस्टर के लिए यूज कर रहे हैं, हर एक एडवाइजर अपने 500 इन्वेस्टर के लिए यूज कर रहा है। तो मुझे तो नहीं मालूम है कि आपने किस इन्वेस्टर का कितना इक्विटी एलोकेशन रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि आपने किस इन्वेस्टर का इक्विटी एलोकेशन में कितना क्या रखा है, राइट। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि मान लीजिए जो आपके पास 15 साल वाला इन्वेस्टर है, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ इन्वेस्टर करना आपका काम है। अगर मान लीजिए आपने स्टडी किया है कि आपके पास में 15 साल वाला इन्वेस्टर है, आपके पास में 15 साल वाला इन्वेस्टर है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा दोगे, राइट। और कोई आपके पास में 8 साल वाला इन्वेस्टर है तो आप उसको मिड एंड स्मॉल कैप कम दोगे। नाउ लेट्स से अगर आपने 15 साल वाले इन्वेस्टर को 40% मिड एंड स्मॉल कैप दिया है और 8 साल वाले इन्वेस्टर को 10% मिड एंड स्मॉल कैप दिया है, तो ये क्या बोल रहा है अप्रैल 2023 में
40% को आप 50% से बढ़ा दो, मतलब 40% का आप 60% कर दो, और जिस इन्वेस्टर को आपने 10% दिया है वो 10% को 15% कर दो। क्लियर है क्या सर? आइडियली ये एलोकेशन होना चाहिए जो भी 100 रुपए आ रहा है, बट अगर आप 100 रुपए नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एलोकेशन मैं जैसे बोल रहा हूं मेरे घर के लिए मेरे लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तो आप 500 इन्वेस्टर के लिए कैसे करोगे? क्योंकि हर एक का टाइम होराइजन डिफरेंट है, हर एक का एलोकेशन आपने जो दिया वो डिफरेंट है, तो आपको यहां से ब्रॉडर गाइडेंस मिल जा रहा है। मतलब दोनों का आप 50% से बढ़ा दो, जिसका आपने 10% मीडियम स्मॉल कैप में रखा उसको 15 कर दो, जिसका 40 रखा है उसको 60 कर दो। क्लियर है क्या सर ये सबको? अगेन आई एम आस्किंग, क्लियर है ये सबको? जी हाँ। जी ठीक है, अब मैं सेम चीज अगस्त 2024 कर देता हूं। तो आज भी ये मार्केट में बोल रहा है कि आप ओवरवेट हो सकते हो, ठीक है, आज भी मार्केट में बोल रहा है कि ओवरवेट हो सकते हो। नाउ सी द डिफरेंस, डेट का हो गया, डिफरेंट हो गया, हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन अब ये नहीं बोल रहा है। ऑल दो आप नैरेटिव जो सुनोगे इंटरेस्ट रेट को यही सुनोगे कि यहां से इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, और आपका आके एरिया मैनेजर यही बोलेगा कि हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड करो, बट यहाँ पे हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन फंड करने के लिए एकदम मना कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि 2.5 साल वाले में आ जाओ डेट में, ठीक है। ब्रॉडली ये बोल रहा है कि अब 30% मत डालो लॉन्ग टर्म डेट में, 20% लॉन्ग टर्म डेट में डालना, 80% शॉर्ट टर्म डेट में डालना। आज भी इक्विटी में ओवरवेट होने बोल रहा है, बट देखो अब चेंज हो गया इसका, जो अभी 81.3 लार्ज कैप हो गया, 9.3 मिड कैप हो गया, 9.4 स्मॉल कैप हो गया। ब्रॉडली मतलब आपको इससे मालूम चल गया है कि 80% लार्ज कैप होगा और 20% मिड स्मॉल कैप होगा। अब किसी को ये एकदम स्पेसिफिकली नहीं फॉलो करना है, क्योंकि ये डेटा साइंस के हिसाब से एग्जैक्ट निकाल रहा है 9.3, 81.3, 9.4। किसी को ये नहीं फॉलो करना है तो आप देखोगे यहां पे स्कोर क्या है, -50 और -50। बोलने का मतलब ये है कि जिसका आपने 40 से 60 कर दिया था और जिसका आपने 10 से 15 कर दिया था, और वो 60 की जगह 30 कर दो और 15 की जगह 7.5 कर दो। क्लियर है क्या सर? अगर आपने किसी का 60% मिड स्मॉल कैप किया होगा, वो तभी सोच के किया होगा क्योंकि वो एग्रेसिव है। एग्रेसिव बोलने का मतलब उसका टाइम होराइजन लंबा है, तो उसको बोल रहा है आधा कर दो। किसी का 60% रखे हो तो उसको 30% कर दो, किसी का टाइम होराइजन शॉर्ट है और किसी का आपने 15% मिड स्मॉल कैप रखा है तो उसको 7.5 कर दो। क्लियर है क्या? -50 और -50 यहां से आपको ब्रॉडली बता दे रहा है कि आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है इस एक्शन को। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली 80% लार्ज कैप होना चाहिए, बचा हुआ पैसा मिड स्मॉल कैप होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ये? तो ये अभी हम जो भी कवर कर रहे हैं पूरा ब्लू लाइन कवर कर रहे हैं। सर आज जो हमने कर दिया वो 6-8 महीने बाद, साल भर बाद वो पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी, हाँ, तो मान लो सर अगर वो है कर ना? दिया, अगर मान लो 6-7 बाद, ऐसा तो नहीं होती है इस बार, जनरली 1.5 साल के अंदर हो गई है, नहीं तो हाँ दोनों ठीक है, 3 2 साल बाद चेंज हो हाँ जाएगी। हाँ, तो फिर आप क्या ये कर करेंगे? सकते हो, पुराने पैसों को भी आपको करना चाहिए, आइडियली नहीं करोगे। मैं आपको अब सर एकदम ये लाइक बता रहा हूँ, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है एक बार मैं देख रहा हूँ, किसका क्वेश्चन है सर ये? मेरा। ओके गौरव सर, एकदम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो जितने लोग भी 2023 में ये यूज कर रहे थे ना, जब ये ओवरवेट होने बोला, पहले तो इसने बोला कि पूरा पूरा सर लमसम डालो, तो उन्होंने लमसम भी डाला, और उन्होंने कहां पे लमसम डाला, तो इसने बोला मिड स्मॉल कैप में ज्यादा लमसम डाला, तो उन्होंने लमसम मिड स्मॉल कैप में भी डाला। अब ये बोल रहा है मिड स्मॉल कैप से निकल जाओ। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एडवाइजर जब जा रहा है इन्वेस्टर को बोल रहा है कि अब हम मिड स्मॉल कैप कम करना है, तो इन्वेस्टर बोल रहा है सर सबसे हाईएस्ट रेट तो मिड स्मॉल कैप में आ रहा है, तो कोई भी क्या परफॉर्मिंग फंड से निकालना नहीं चाहता है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, भले इन्वेस्टर अगर आपको नहीं भी निकालने दे रहा है, आप उसका फ्रेश पैसा इस तरीके से लार्ज कैप में लेके आओ कि उसका थोड़ा रेशियो मेंटेन हो जाए। मतलब अब आप पुराना पैसा नहीं निकालने दे रहा, मत निकालो, बट फ्रेश पैसों को मिड स्मॉल कैप में मत डालो, तो उस तरीके से भी उसका रेशियो मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो ये जितने भी बात कर रहे हैं ब्रॉडर गाइडेंस, अभी इसको नहीं मालूम है रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, ठीक है। अभी मान लो यही नो प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो अब इसका लास्ट में आपको नो प्रोफाइल का मिलेगा कि सब ब्रॉडर गाइडेंस के बेसिस पे। अब मैं नो प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूं, अब डायरेक्टली अब मुझे ना यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको मान लो 25 लाख रुपए लेके आ रहा है, ठीक है, 25 लाख रुपए डालना है, 25, 1 2 3 4 5, 25 लाख रुपए से आपने डाल दिया। ये बोला 15 लाख रुपए इक्विटी में डाल दो, 10 लाख रुपए डेट में डाल दो। अब ये पूरा कैलकुलेट करके बता देगा, आपको कोई ब्रॉडर गाइडेंस नहीं, मतलब ब्रॉडर गाइडेंस ही दे रहा है बट आपको भी कैलकुलेट करके बता दे रहा है। तो ग्रीन वाले से आप एडिट कर सकते हो, येलो वाले से आप ईयर और मंथ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये बोल रहा है 25 लाख रुपए से 15 लाख इक्विटी में डाल दो, 10 लाख डेट में डाल दो, 10 लाख डेट का 2 लाख लॉन्ग टर्म डेट में डाल दो, 8 लाख शॉर्ट टर्म डेट में डाल दो, 15 लाख में इसने बाइफरकेशन दे दिया, 12 लाख लार्ज कैप में डाल दो, बचा हुआ पैसा मिड स्मॉल कैप में डाल दो। किसी को इतना सब एडवाइस नहीं फॉलो करना है, तो कुल मिलाकर इसने 25 लाख का
दो बाइफरकेशन दे दिया कि मेजर ओवरवेट आपका 15 लाख में इक्विटी में फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए और 10 लाख मेजर जो ओवरवेट जो होना चाहिए आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में होना चाहिए। क्लियर है क्या सर? तो स्टेप बाय स्टेप ये आपको ब्रॉडर गाइडेंस भी दे रहा है, ब्रॉडर गाइडेंस के बाद में कैपिटल एलोकेशन गाइडेंस भी दे रहा है, कैपिटल एलोकेशन गाइडेंस के बाद में स्पेसिफिक कैटेगरी गाइडेंस भी दे रहा है। क्लियर है ये? सर इसमें इसी एलोकेशन वाले पार्ट में लास्ट ईयर क्या सजेस्ट कर रहा था? हाँ, मैं एक बार दिखा देता हूं। अब मैं सेम अगस्त 2024 की जगह लेट से मैं हाई और ऑल टाइम मार्केट हाई में चले जाता हूं। ठीक है, नवंबर में ऑल टाइम मार्केट हाई नवंबर 2020, वही 25 लाख रुपए अगर आप नवंबर 2023 में लेके आते, जहां पे इंडस्ट्री बोलना चालू कर दी थी कि ऑल टाइम मार्केट हाई 21,000 का निफ्टी, अब यहां से तो आप एसटीबी करो या बैलेंस एडवांटेज फंड में करो, लेट से क्या बोल रहा है, 20 लाख रुपए इक्विटी बोल रहा है, 5 लाख रुपए डेट बोल रहा है, 5 लाख रुपए डेट में 1.5 लाख लॉन्ग टर्म डेट बोल रहा है, 3.5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म डेट बोल रहा है। अब यहां देखोगे तो लार्ज कैप में बोल रहा है, बच्चों में मिड स्मॉल कैप। अब 25 लाख में ये बोल रहा है कुल मिला के 20 लाख रुपए फ्लेक्सी कैप में डाल दो और 5 लाख रुपए बैंक इंटरेस्ट में डाल दो। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। अगर सेम चीज को मान लो मैं अगर मतलब मार्च 23 हाँ, कुल मिला के अगर मान लो मैं जनवरी 2020 में बोलता हूँ, इसको तो नहीं मालूम कोविड आने वाला है, राइट? सेम 25 लाख रुपए लेके आ रहे हो, बोरा 10 लाख इक्विटी में डाल दो, 15 लाख डेट में डाल दो। कैसे बाइफरकेट करना है तो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का दे दिया। कुल मिला के यहाँ पे बोला 25 लाख में 10 लाख मल्टी कैप में डालो और 15 लाख फ्लोटिंग रेट में डालो। अब किस दिन ये चेंज होगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हम मेरे को ये प्री कोविड था, ये प्री कोविड था। अब मार्च में कोविड आ गया, अप्रैल पूरे के पूरे 25 लाख को इक्विटी में ले आओ, पूरा का पूरा डेट आपको खाली कर देने बोल रहा है। लार्ज कैप में 17 लाख रखने बोल रहा है, बचाओ मिड स्मॉल कैप में रखना बोल रहा है। अगर आपको ये नहीं भी करना है तो क्या बोल रहा है, एक काम करो 25 लाख रुपए मल्टी कैप में ले, ये देखो फ्लोटिंग रेट पूरा गायब करवा दिया, पूरा पूरा डेट खाली कर दो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये आपके जो ब्लू वाले हो गए पूरे नो प्रोफाइल के हिसाब से हो गए। नो प्रोफाइल मतलब ब्रॉडर गाइडेंस, मतलब एसेट क्लास के रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे क्या करना है। क्लियर है क्या सर? अब हम आ जाते हैं एसेट क्लासेस के रिस्क प्रोफाइलिंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल से। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एसेट क्लास के रिस्क प्रोफाइल को इंटीग्रेट कर रहे हैं इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल से। तो कौन सी तीन चीज होती है? एक होता है लमसम, एक होता है एसडब्ल्यूपी और तीसरा क्या होता है? एसआईपी होता है, राइट? तो अब हम लमसम के वजह से देखते हैं पहला। तो अब आपको लमसम में आप जैसे आ गए तो आप ही को डिसाइड करना है ना कि आपका इन्वेस्टर क्या है, लमसम वाला है, एसडब्ल्यूपी वाला है कि एसआईपी वाला। आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरा इन्वेस्टर लमसम वाला है, लमसम मोड में आना चाहता है, तो आपने क्लिक कर दिया। अब अगेन आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टर एग्रेसिव है, नो प्रोफाइल है, मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपका इन्वेस्टर एग्रेसिव है। नाउ सेकेंड लेवल में आपने डिसाइड कर लिया, अब हम एग्रेसिव में भी आपको 3 प्रकार के एग्रेसिव दे रहे हैं। नाउ दैट इज द ब्यूटी। आप देखोगे ना एग्रेसिव में भी 3 प्रकार के एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं। हमको क्या लगता है एग्रेसिव इन्वेस्टर वही है जिसका लॉन्ग टर्म होराइजन है, जिसका लॉन्ग टर्म होराइजन है वो जनरली एग्रेसिव इन्वेस्टर है। बट एग्रेसिव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है एग्रेसिव ऑल इन, मतलब बोलने का मतलब उसका ये है कि उसका टाइम होराइजन भी लंबा है, मतलब वो बोल रहा है उसका टाइम होराइजन भी लंबा है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी मार्केट में ही बैठना चाहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इक्विटी मार्केट में ही बैठना चाहता है। ठीक है, वो एकदम क्लियर है कि सर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी में रहूंगा और मैं एग्रेसिव हूं, मेरा लंबा समय का होराइजन है, तो प्लीज मुझे डेट में लेके मत आना। तो ये वाला एग्रेसिव ऑल इन में या आपको डेट में लेके तभी जाने के लिए सजेस्ट करेगा जब एक्सट्रीमली मार्केट एक्सपेंसिव होगा। एक्सट्रीमली, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब एक्सट्रीमली इसको लगेगा कि नहीं कितना भी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, कितना भी इन्वेस्टर मेरे को पुश कर रहा है कि मार्केट में रहना है, अगर इसको स्कोर्स नहीं सही लगेंगे, स्कोर नहीं सही लगने पे ही ये बोलेगा कि आपको मार्केट से थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हो। ये एग्रेसिव ऑल इन है। वैसे ही दूसरा एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है जो आपको कंफ्यूज करता है बार बार। कंफ्यूज क्या करता है? बोलता तो है मेरा 10 साल का टाइम होराइजन है या 12 साल का टाइम होराइजन है, बट उसके साथ में क्या बोलता है कि सर अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप मेरे को मार्केट से बाहर भी निकाल सकते हो। मतलब आपको कंफ्यूज करके रखता है, हमेशा बोल के रखता है कि मेरा लंबा समय का टाइम होराइजन, बोलता भी है कि मैं एग्रेसिव हूं, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी बोलता है कि सर देखना मेरा पैसा ना डूब जाए या मेरा पैसा ज्यादा डाउनसाइड ना हो जाए। तो ये यहां पे कुल मिलाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये आ जाती है
कि हमको डिसाइड करना है कि कब इसका पैसा हमको रखना है मार्केट में और कब हमें को इसका पैसा निकालना है मार्केट से। तो एग्रेसिव ऑल इन, जब आपने एग्रेसिव सेलेक्ट किया और उसके नीचे में सब प्रोफाइल सेलेक्ट किया, ठीक है, एग्रेसिव ऑल इन, तो हार्डली 15 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप इसमें जो रीएडजस्टमेंट करोगे 3 से 5 बार ही रीएडजस्टमेंट करोगे। अब कब करना रहेगा रीएडजस्टमेंट ये आपको सिस्टम बता देगा, ठीक है, 3 से 5 बार रीएडजस्टमेंट करोगे। वो एग्रेसिव इन्वेस्टर जो आपको कंफ्यूज करता रहता है बार बार, वो एग्रेसिव ऑल इन ऑल आउट, मतलब आपको बाहर भी निकलना चाहे तो निकाल सकते हो इस इन्वेस्टर को आप। तो ये आपको 6 से 8 बार रीएडजस्टमेंट के लिए गाइडेंस देगा। 15 साल में 6 से 8 बार आपको रीएडजस्टमेंट करने बोलेगा इक्विटी में। सो दैट इज द ब्यूटी। और तीसरा एग्रेसिव इन्वेस्टर जो ये बोलता है कि कुछ भी हो जाए मुझे डाउनसाइड प्रोडिक्शन भी रेगुलर चाहिए, मतलब मैं एग्रेसिव तो हूं 10 साल के लिए तो डाल रहा हूं, बट मुझे डाउनसाइड भी प्रोडिक्शन रेगुलर चाहिए, मतलब इसको हम रेगुलर रीबैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए शायद ये 15 साल की जर्नी में आपको 14 से 16 बार आपको रीएडजस्टमेंट का गाइडेंस दे। कब देगा ये हमको नहीं मालूम है, हो सकता है 2 महीने में दे दे, हो सकता है 3-3 साल तक भी ना दे, ये टोटली स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन सर कहां पे कोई भी डेटा साइंस में, वर्डिक डेटा का साइंस है, डेटा और साइंस, डेटा साइंस में कोई भी डिसीजन नैरेटिव के बेसिस पे कौन क्या मार्केट आउटलुक बोल रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, क्या न्यूज आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी स्कोर्स अनफेवरेबल होंगे ये आपको रीएडजस्टमेंट के लिए गाइडेंस दे देगा। एंड इसके लिए कोई फिक्स टाइम होराइजन नहीं है, 3 महीने में भी दे सकता है, हो सकता है कि 3-3 साल तक कोई गाइडेंस ना दे। तो कई लोग वही जो 2023 में हमें ऑनबोर्ड हुए वो बोले आशीष 1 साल हो गया यार तू मार्केट में बैठने का ही बोलता रहा, पहले चलो मिड स्मॉल कैप में आप लोग बोल रहे थे, आज हम लार्ज कैप ओरिएंटेड ज्यादा बोल रहे हैं। तो हो सकता है सर 4-5 साल में आपको 3 ही या 4 ही गाइडेंस है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को प्लीज फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज कीजिएगा, शॉर्ट टर्म के यूज मत करिएगा। यस ये पूरा कोर एलोकेशन को लेके इसलिए है, बाकी जो हमारे टैक्टिकल एलोकेशन होंगे, सेक्टरल एलोकेशन होंगे, स्टाइल को लेके होंगे, वो शायद 3 से 6 महीने में चेंज हो जाते हैं। तो उसमें आज हम नहीं जा रहे हैं ग्लोबल एल्गोरिथम में, हम नहीं जा रहे हैं। अगेन इंडिया के हम पहले हैं जो यूएस मार्केट का भी एल्गोरिथम डेवलप करके, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम इंडिया से बैठ के यूएस मार्केट के एमएफडी और आरआईएस को हेल्प करेंगे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ठीक है सांतो चेक करो। सो सेम जो यूएस के एमएफडी आरआई के पास एल्गोरिथम होगा, सेम एल्गोरिथम आपके पास में भी होगा। सो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो मेजर प्रोफाइल, उसके हिसाब से ब्रॉडर प्रोफाइल। अब देखो मान लो एग्रेसिव है, ठीक है, मैं उस इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं जो आपको कंफ्यूज करता है, एग्रेसिव ऑल इन ऑल आउट। अब आप लोगों ने क्या सीखा, एग्रेसिव इन्वेस्टर तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में बैठा के रखना है। अब मान लो ये 25 लाख रुपया मार्च 2020 में दे रहा है, तो क्या बोल रहा है 25 लाख रुपया पूरा इक्विटी में डाल दो। कहां पे डालने बोल रहा है, 15 लाख लार्ज कैप, बचा हुआ पैसा मिड स्मॉल कैप। किसी को नहीं करना तो पूरा का पूरा क्या बोल रहा है, 25 लाख रुपए काम करो और मल्टी कैप में डाल दो। अब मैं यही एक इन्वेस्टर को एक काम करता हूं, फेब 2020 कर देता हूं। अब फेब 2020 में हमको तो नहीं मालूम है कि कोविड आने वाला है, नाउ विल नॉट बिलीव। सो इन्वेस्टर जो हमारा कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं, लाइव कॉन्फ्रेंस, उनको मैंने ये बता चुका है, इवन कोविड जैसा इवेंट कई लोगों को लगता है कि आशीष 012 में आप कैसे बोलते हो कि आपकी 99% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। हम इतना 99% की प्रोबेबिलिटी इसी बेसिस पे बोलते हैं कि 0 में कभी भी कोविड जैसा इवेंट, कि मोदी जी हट जाए, राहुल गांधी आ जाए, इस टाइप का इवेंट, या बहुत बड़ा नेचुरल कैलामिटी आ जाए, इवन ग्रेट डिप्रेशन जो यूएस का है वो कभी 0 में नहीं आया। जिन लोग भी बड़ा इवेंट कराते हैं उन लोग भी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, उन लोग जितने लोगों ने भी इवेंट कराया 1 के ऊपर कराया। नाउ द ब्यूटी इज फेब 2020 में हमको नहीं मालूम था कि मार्केट में लॉकडाउन होने वाला, मतलब पूरी की पूरी दुनिया बंद होने वाली है मार्च 2020 में। अब से 25 लाख रुपए लेके आ रहे हो, ठीक है, मार्च 2020 में, और एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना सर, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि एग्रेसिव नहीं है। क्या बोल रहा है, पूरा 25 लाख रुपए डेट पे रखो। अब इसको नहीं मालूम है, तो जितना भी हमारा एल्गोरिथम होता है मंथ एंडिंग के हिसाब से होता है। फेब एंडिंग है, 25 लाख रुपए लेके आ रहे हो, ये पूरा पूरा का पूरा आप कहां पे रखो, डेट में रखो। कहां पे रखना है, डेट में, पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म डेट में रखना है। आपको डायरेक्टली कैटेगरी चाहिए तो बोल रहा है 25 लाख रुपए पूरा लो ड्यूरेशन फंड या लिक्विड फंड में रखो। सो दैट इज द ब्यूटी। अगेन मैं बोलूंगा सर, किस इन्वायरमेंट के कुछ साइकिल के किस जोन में क्या आप कैपिटल एलोकेशन कर रहे हो, क्रॉस कैटेगरी सब कैटेगरी, किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब यहां जाके जिसको लिक्विड फंड उठाना है डीएसपी को लिक्विड फंड डीएसपी को उठा ले, जिसको निपॉन को उठाना है वो निपॉन को उठा ले, जिसको एसबीआई को उठाना है वो एसबीआई को उठा ले। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय जो 25 लाख रुपए ले आ रहा है वो डेट में होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म डेट में होना चाहिए और वो लिक्विड में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन से फंड में होना चाहिए। क्लियर है क्या सर ये?
इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जी यस। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लो अभी तक हम नहीं दे रहे थे बट हमने अब देना चालू कर दिया है कि अब कौन से लिक्विड फंड में भी जाना। मान लो आपको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए, ठीक है, तो वापस आप होम बटन में आ जाओ। तो जितने भी पिंक वाले हैं ना, तो लेफ्ट हैंड से ब्रॉडर गाइडेंस है, राइट हैंड साइड से आपको लमसम, एसडब्ल्यूपी, एसआईपी के पूरे गाइडेंस है, और पिंक से आपको फंड है। तो मान लो लिक्विड किस में आता है, डेट में आता है, आप डेट में जाओगे। हमने यहाँ सारे कैटेगरीज अक्रॉस 40 कैटेगरीज हमने कवर किया, ठीक है। इसमें जाके कैटेगरी में आप लिक्विड क्लिक करोगे, अब इसमें से जो जो ग्रीन वाले फंड आप वो कर सकते हो, जो जो येलो वाले फंड है वो आपके सेकंड प्रायोरिटी फंड, और जिसके सामने 1-1 लिखा हुआ है सबसे प्रायोरिटी वाले फंड है। तो इस तरीके से आप जाके फिल्टर भी कर सकते हो। तो मैंने ये लमसम का कवर कर दिया, आप जाके लमसम हर किसी का देख सकते हो, चाहे एग्रेसिव हो, मॉडरेट हो, कंजर्वेटिव हो, उस हिसाब से फिर आप नीचे का डिसाइड भी कर सकते हो, सब प्रोफाइलिंग भी। 90 पर हमने कोशिश की 90% ऑफ द आपके इन्वेस्टर प्रोफाइल कवर हो जाए हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड प्लीज टू रिमेंबर सर, दिस इज अ हार्डकोर रिसर्च टूल। ये आपके रिसर्च टूल के लिए, ये कहीं से भी आपको फंड का रिपोर्ट निकाल के देना, पोर्टफोलियो का रिपोर्ट निकाल के देना, ये कुल मिला के सीआरएम रिपोर्ट और फंड का सेल्स रिपोर्ट नहीं है। ये कुल मिला ये आपका हार्डकोर रिसर्च टूल है। ये आपको पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग बताएगा, ये आपको प्रेजेंटेबल सेल्स रिपोर्ट बना के नहीं देगा। सेल्स रिपोर्ट बना के देने वाले बहुत से ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज कीजिए। वो ये नहीं बताते कि किसका सेल्स रिपोर्ट बनाना है, हम ये बताते हैं किसका सेल्स रिपोर्ट बनाना है। अब आप जाके पूछोगे कि लिक्विड फंड में क्या मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, क्या है, वो सब नहीं बताएगा। ये आपको डायरेक्टली बस आपको एक्शन बता दिया। अब आपको मान लो ऐसी जगह लिक्विड फंड करना है, उसको जाके आप रिपोर्ट निकाल लो वैल्यू रिसर्च से, मनी कंट्रोल से, जो भी आप फंड रिसर्च का टूल यूज करते हो। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से साइकिल के कौन से जोन में कौन सी कैटेगरी करनी है। हेलो, ये हेलो यस सर। आशीष जी, ये जो आपने 3 कैटेगरी ग्रीन, येलो और ग्रे, तो नंबर 1 क्या ग्रीन रहेगा? नंबर 1 ग्रीन से सिंपल है सर, ट्रैफिक लाइट की तरह, ग्रीन येलो रेड। ग्रीन सबसे प्रायोरिटी, येलो सेकंड प्रायोरिटी, रेड वाला आप अवॉइड करो। अच्छा, ग्रे सर है ना? गोल्ड का भी ग्रे बताइए थोड़ा एग्जांपल लेके। हाँ सर। सर गोल्ड का भी बताइए। सर गोल्ड का अलग है सर, वो पूरा हमारा मरीना और ग्लोबल और थीमेटिक में, आज हम कवर नहीं कर रहे उसको। ओके ओके। सर 1 का क्या है? 1 बोला कि सर वसीम सर आज 7% गोल्ड का लोकेशन बोल रहा है वो, अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो। सर 1 लिखा तो वो ओके, क्या था ओके। सर? 1 1 का क्या है सर? सर 1 का मतलब अगर आपको रेड ग्रीन येलो के में भी नहीं जाना है तो 1 आर द मोस्ट प्रायोरिटी फंड। मोस्ट प्रायोरिटी फंड 1। मोस्ट प्रायोरिटी? हाँ, सबसे प्रायोरिटी आप उसको दे सकते हो। अच्छा, मोस्ट प्रायोरिटी उसको दे सकते हैं। हाँ। ओके, ठीक है। तो हमने अक्रॉस ये कवर किया। अब मैं जैसे लमसम का आपको दिखाया, ये पूरा आप चेक कर सकते हो। अगेन मैं वन स्टेप बाय स्टेप नहीं जाऊंगा, मैं बस अभी आपको देखना सिखा रहा हूँ कैसे देखते हैं, ठीक है। वैसे ही आप एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टर्स का भी कर सकते हो कि कैसे करना है। बस आपको क्लिक करना है कि एसडब्ल्यूपी डालनी है, तो मुझे आज तो जितने भी आज तक रिटायरिंग इन्वेस्टर को लेके बने हैं सर, अगेन मैं रिपीट करूंगा, सब रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर ही बस बना के रखे हुए। रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर क्या होता है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप लोग अज्यूम करते हो 12% और 8%, वो कैसे आएगा। तो हम आपको अगेन वो बताते हैं कि एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टर को भी कितना आपको किसका, अगर मान लो कोई 1 करोड़ रुपए लेके आ रहा है तो उसका पोजीशनिंग क्या होना चाहिए, तो आप एसडब्ल्यूपी यहां से चेक कर सकते हो। बोल गए जा। ठीक है, मैं एसआईपी में आ जाता हूं। नो सर एचडब्ल्यूपी बताइए ना। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो, अरे एसआईपी देखो ना पहले। चलो एसडब्ल्यूपी मैंने क्लिक किया, अगस्त 2020 में आप 85 लाख रुपीस लेके आ रहे हो, ठीक है। एसडब्ल्यूपी देना है, ठीक है सर, एसडब्ल्यूपी देना है। ये बोल रहा है 85 लाख रुपीस पूरा मल्टी कैप में डाल दो। आप कभी भी मल्टी कैप में नहीं डालने वाले जिसका एसडब्ल्यूपी देना है। दैट इज द मेन थिंग। आपको सेलेक्ट करना है कि आपका एसडब्ल्यू वाला इन्वेस्टर मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है। आपने मान लो मॉडरेट सेलेक्ट किया, और मान लो आपका इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है, तो मान लो आप कंजर्वेटिव सेलेक्ट कर लो। तो कंजर्वेटिव के लिए बोल रहा है 63 लाख रुपीस बैफ में डाल दो, और मल्टी कैप में 21 लाख रुपीस डाल दो। दैट इज द ब्यूटी। तो ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने जो सीखा है सर वो हाफ बेक्ड है, मतलब वो आप लोग जनरली बस इन्वेस्टर को देख के आप डिसीजन लेते हो। मेरा जो प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर का भी प्रोफाइलिंग लेगा, और किस साइकिल के किस जोन में खड़े उसका भी प्रोफाइलिंग लेगा, जो हम एक बेसिकली 012 के हिसाब से देखे थे। बट 012 इज द वेरी बेसिक, इसमें बहुत से एडवांस स्कोर होते हैं, बहुत से एडवांस मैट्रिक होते हैं। मैं तो आपको बस प्राइस ट्रेडिंग के हिसाब से समझाया, बट बहुत एडवांस मैट्रिक भी होते हैं, वो सारों को स्टडी करके ये बताता है आपको।
अब यही सर, अगस्त अगस्त 2020 को अगस्त 2024 कर देता हूं, ठीक है? जी। यही अगस्त 2020 को अगस्त 2024 कर देता हूं। वही 85 लाख रुपीस मान लो आपको डालना है एक रिटायरिंग इन्वेस्टर का। अब आप डिसाइड कर सकते हो आपका रिटायरिंग इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है कि मॉडरेट है। हमने एग्रेसिव का दिया ही नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, कि कोई भी हम नहीं चाहते कि रिटायरिंग इन्वेस्टर को एग्रेसिव बनाए। मॉडरेट। आपको 85 लाख रुपीस आज बैफ में डालने बोल रहा है। अब सेम चीज मान लो मॉडरेट आपका रिटायरी है बट मॉडरेट है। किस रिटायरिंग इन्वेस्टर को सर मॉडरेट बोल सकते हो? जिसके पास में सफिशिएंट कैश फ्लो है, जो बस आपके पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिनके बच्चे लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके बच्चों की नौकरी को लेकर कोई झंझट नहीं है। ये सब एक रिटायरिंग इन्वेस्टर को मिला के मॉडरेट भी हो सकता है और एक रिटायरिंग इन्वेस्टर कॉन्जर्वेटिव भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक रिटायरिंग इन्वेस्टर दे रहा हूं कि विडो हो गई, ठीक है, रिटायरी है, विडो हो गई, मतलब उनका पति नहीं है, बच्चे भी सेटल्ड नहीं है, उसके पास जो भी पैसा है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कॉन्जर्वेटिव होगी। तो आपको अगेन रिस्क प्रोफाइलिंग आप लोग डिसाइड करोगे सर। ये मशीन कितना भी ट्रेन हो जाए वो रिस्क प्रोफाइलिंग डिसाइड नहीं कर सकता, तो आप लोग रिस्क प्रोफाइलिंग डिसाइड करोगे, उसको बताओगे और ये आंसर दे देगा। अब मान लो एक रिटायरिंग इन्वेस्टर आपका मॉडरेट है, आपको 85 लाख रुपीस डालना है अगस्त 2024 में। ये आपको बोल रहा है 85 में 58 लाख रुपीस बैफ में रहेगा और 25 लाख रुपीस फ्लेक्सी कैप में रहेगा। तो अगर अब अगेन आप ये इसको बोलोगे तो कितने बार ये रीएडजस्टमेंट करेगा? 6 से 8 बार आपको 15 साल के जर्नी में रीएडजस्टमेंट करवाएगा। बट प्लीज वो 6 बार रीएडजस्टमेंट करना सर, उससे क्या होगा, आप डाउन साइड भी प्रोटेक्ट कर पाओगे और अपसाइड को भी कैप्चर कर पाओगे। तो इस तरीके से रिटायरी का कर सकते हो। रिटायरी क्लियर है कि सर आगे बढ़ू क्या? शैल आई Yes, sir. प्रोसीड? या तो अगेन अब एसआईपी में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका टाइम होराइजन क्या, आपका अमाउंट क्या। मान लो आपको 25,000 रुपए की एसआईपी करनी है और आपको 3 साल की एसआईपी करनी है, ठीक है, अगस्त 2024 3 साल के प्लस की एसआईपी करनी है, मतलब 3 ईयर प्लस। हम 3 प्रकार का दिए, 3 साल से ऊपर का, 7 साल के ऊपर का, 12 साल से ऊपर का, मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म 8-10 साल नहीं होता, हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म 12 साल के ऊपर का होता है। तो हमने अपने हिसाब से टाइम फ्रेम आपको दे दिया, 3 साल, 7 साल, 12 साल। तो मान लो 25 साल की एसआईपी करनी है अगस्त 2024 में, तो बोल रहा 25,000 की एसआईपी में 7,500 आप फ्लेक्सी कैप में करोगे और 70,500 आप बैफ में करोगे। सेम 25,000 की एसआईपी मान लो अगस्त आप 2020 में लेके आ रहे हो, तो क्या बोल रहा है, पूरी की पूरी 25,000 रुपए की एसआईपी आप मल्टी कैप में करोगे। अब सेम 25,000 की एसआईपी मान लो आप 10 साल के होराइजन के वैसे लेके आ रहे हो, ठीक है, सेम 25,000 की एसआईपी बट इन्वेस्टर का टाइम होराइजन लंबा है। तो क्या बोल रहे हैं, 12,500 मल्टी कैप में कर दो, 6,000 मिड कैप में कर दो, 6,000 रुपए स्मॉल कैप में कर दो। और सेम अगस्त 2024 में अभी क्या सजेस्ट कर रहा है हम देख लेते हैं। सेम 25,000 की एसआईपी आप मान लो लॉन्ग टर्म के लिए लेके आ रहे हो, तो देखो बदल गया रेशियो, 16,000 रुपए फ्लेक्सी और मल्टी कैप में करने पड़ रहा है, बचा हुआ अमाउंट आपको मिड एंड स्मॉल कैप में करने पड़ रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी। नाउ अगेन आई विल रिपीट सर, प्लीज डोंट फाइट विद दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इन अ कैटेगरी सिलेक्शन। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 0 है, अगर मैं ये बोल रहा हूं लमसम डालना है, और अगर मैं बोल रहा हूं मिड स्मॉल कैप में डालना है, और अगर आप एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो कि पहले आप तो आप एसटीपी कर रहे हो और आप उसमें मान लो एसटीपी करने के बजाय आप बैलेंस एडवांटेज फंड बेच रहे हो क्योंकि आपको इंडस्ट्री बोल रही है बैलेंस एडवांटेज फंड बेचने के लिए, you have the 99.9% probability to get wrong। कई लोग बोलते हैं आशीष 100% क्यों नहीं बोल देता है तू? 0.1% भगवान के नाम पे हमेशा छोड़ देता हूं, बट यू हैव द प्रोबेबिलिटी टू 99.9% टू गेट रॉन्ग। सिमिलरली अगर एक्सट्रीम मार्केट लेवल में ये बोल रहा हूं एसटीपी करो सर, इक्विटी सेविंग फंड में रहो, इक्विटी सेविंग फंड के अलावा कहीं मत जाओ, और अगर आप उसी समय मिड स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हो, लमसम डाल रहे हो, यू हैव द 99.9% प्रोबेबिलिटी टू गेट रॉन्ग। तो एक्सट्रीम जोन में तो सर आप 0.1 आप ठीक हो सकते हो, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए आप मान लो मेरे सिस्टम को आउट परफॉर्म कर सकते हो, बट ऑन अ 5 ईयर रोलिंग बेसिस, मैं 5 साल की बात कर रहा हूं ना, ऑन अ 5 ईयर रोलिंग बेसिस कोई भी 5 साल का टाइम पीरियड निकाल लो, इस पर्टिकुलर सिस्टम को कैटेगरी सिलेक्शन में आउट परफॉर्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को कैटेगरी सिलेक्शन में आउट परफॉर्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप मान लो 25,000 रुपए की एसआईपी लेके आ रहे हो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो आप 25,000 रुपए की एसआईपी लेके आ रहे हो, आप 20,000 रुपए अपने हिसाब से डालो,
ठीक है, मान लो 25,000 रुपए की एसआईपी लेके आ रहे हो और आपने टाइम होराइजन भी डिसाइड कर लिया कि 3 साल का टाइम होराइजन है, 20,000 रुपए आप अपने हिसाब से मैनेज करो हर 3 साल में, अब 5,000 रुपए इसके हिसाब से मैनेज करने दो। 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो रिजल्ट आएगा आपके रिजल्ट से सुपीरियर होगा, 99.9% प्रोबेबिलिटी। और क्यों सुपीरियर होगा? सुपीरियर आशीष इंगले नहीं है इसमें, सुपीरियर इसके पास वॉइस नहीं है सुनने के लिए, इसके पास नरेटिव नहीं है सुनने के लिए, इसको न्यूज और इवेंट से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा काम जो कर रहा है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से कर रहा है, और इसका जो फ्रेमवर्क और जो सिस्टम है वो बहुत एडवांस साइंस के बेसिस पे, जो आज के मतलब इंडिया नहीं, आज के दुनिया का जो एडवांस साइंस है उसको लेके काम कर रहा है। फॉर्म बताओ, वो फॉर्म। सो इस तरीके से आप एसआईपी का भी अमाउंट जब भी देखना आप देख सकते हो कि आपको एसआईपी का दे देगा। नाउ लेट्स से आज ये 25,000 रुपए की एसआईपी आपको 3 साल ही करनी है, ये बोल रहा है बैक में चले जाओ, उसने भर के नहीं दिया। क्वेश्चन आता है नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट बैक में जाओ हॉस्पिटल का और नाम, कौन से फ्लेक्सी कैप में जाओ, हॉस्पिटल राइट? जो ये आपको नेक्स्ट बताया क्वेश्चन वो आता है। ये नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, यहाँ पे टिक करना। तो आप इस होम में जाइए सर, आप लोग फ्लेक्सी कैप कौन सी कैटेगरी में आता है? इक्विटी में आता है, राइट? आप इक्विटी में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सारे हमने कैटेगरी दी है, ठीक है। अगर आपको फ्लेक्सी कैप में नहीं आके लार्ज कैप मिड कैप में जाना, आप जाके देख सकते हो, बट हमने सारे कैटेगरी यहाँ पे कवर किए। आप फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर लो यहाँ से। तो अगेन येलो एंड ग्रीन वाले आप फंड कर सकते हो और रेड वाले फंड आप अवॉइड कर सकते हो। और 1-1 जहां पे लिखा है वो प्रायोरिटी फंड, तो आपको कुछ रेड के सामने भी 1 मिलेंगे। तो आज यूटीआई फ्लेक्सी कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट हमारे मरीना, क्योंकि हम जब फंड सिलेक्शन करते हैं तो अब अभी आज मैं मरीना कवर नहीं कर रहा हूं, मरीना के हिसाब से हमें ये मालूम चलता है कि कौन सा पोटेंशियल आउट परफॉर्मर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल। तो आज भले क्वालिटी काम नहीं कर रहा है, और क्वालिटी काम नहीं कर रहा है करके यूटीआई फ्लेक्सी कैप काम नहीं कर रहा है, बट दिस कुड बी अ पोटेंशियल आउट परफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ मरीना। तो अगर आपको ज्यादा कंट्रोवर्शियल फंड नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल फंड है यूटीआई फ्लेक्सी कैप, तो आप सिंपल जाके ग्रीन देख लो और 1 देख लो, या बस ग्रीन और येलो देख लो, और रेड वाले फंड का अवॉइड कर दो। क्लियर है क्या सर? सिमिलरली मान लो बच्चों आप ऐसा बैक में बोल रहा है, तो बैक आपका हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, हाइब्रिड में चले जाओ, आपको सारे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स मिल जाए, मतलब कैटेगरीज मिल जाएंगे। आप बैलेंस एडवांटेज फंड में क्लिक कर दो, ग्रीन और येलो वाले फंड आप कर सकते हो, 1 वाले फंड आपकी प्रायोरिटी है, और रेड वाले फंड आप अवॉइड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आज जो मेरा एजेंडा था, मैं नेक्स्ट 5 मिनट के लिए Q&A के लिए ओपन करूंगा। आज जो मेरा एजेंडा था कोर एलोकेशन को लेके था, तो हम कोर एलोकेशन आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वाले सेशन में हम सैटेलाइट एलोकेशन कवर करेंगे, जहां पे ग्लोबल मार्केट आएगा, सेक्टोरल आएगा और स्टाइल आएगा, मरीना। So I hope these particular 4 workbooks are clear to each and everyone. You can go through this cloud-based dashboard and you can seek your study according to your energy level and according कितना आपके पास में टाइम है। नहीं है टाइम, डायरेक्टली सर एल्गो मास्टर समरी में आ जाओ और चीजें निकाल लो। उतना भी टाइम नहीं है तो जिस दिन मैं मूल्यांकन जीबीटी कवर करूंगा 1.5 आवर सेशन का, आप मूल्यांकन जीबीटी का कर लेना। अदरवाइज मैंने वीडियो ट्यूटोरियल शेयर कर दिया है सारी चीजों का, आप जाके देख सकते हो। Now I am opening this particular forum for a Q&A. Any feedback, sir? How is the particular platform? I hope each and everyone is agree with me that it is all about capital allocation. Fund selection हमेशा लास्ट में आता है। इन्वेस्टर का पूरा फोकस फंड सिलेक्शन को लेके है, इसलिए जितने भी इंडस्ट्री में रिसर्च टूल बने थे सब फंड सिलेक्शन लेके बने थे। बट अगेन आई विल रिपीट, इट इज नॉट अबाउट फंड सिलेक्शन, इट इज अबाउट किस इन्वेस्टर का, किस प्रोफाइल के इन्वेस्टर का, कौन सी कैटेगरी में आप पैसे लेके जा रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। I think everyone is on the same page. You can unmute yourself. I will request each and everyone to unmute themselves. सर इस पे वर्किंग कब से शुरू करेंगे हम? तो सर अब मैं आज से आज ऑनबोर्डिंग, जो ऑनबोर्ड नहीं हुए, जो ऑनबोर्ड हो गए उनके लिए तो अच्छी बात है, जो ऑनबोर्ड नहीं हुआ आज इवनिंग से ऑनबोर्डिंग चालू हो जाएगी। ओके सर, एक बात और पूछना थी, ये जो HDFC बैफ और ICICI बैफ का तो आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सॉरी सर, HDFC बैफ और ICICI बैफ दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो आपने तो दोनों ही बताए उसमें। सर आपके ऊपर है सर, आप मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपका अभी सब्जेक्टिव है कि आपको क्या करना है, आप चले जाओ, आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में जो आपको करना है आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। आप येलो और ग्रीन फंड का कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज कर लो। जी जी, ग्रीन है। सर जो अपनी बैंडविड्थ अपन ने ली हुई है 0 to 1.25, बैलेंस एडवांटेज है। वो
अभी तक जो अपन ने वो ऐसे। एनालिसिस किया है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स के हिसाब से ही नहीं, किया हुआ है ना? सबका है, निफ्टी 50 का है, निफ्टी मिड कैप 50 का, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, निफ्टी 500। तो सर अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन साइकिल में 11 नंबर की वर्कशीट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डेली आपको देख सकते हो, डेली की बेसिस पे क्या स्कोर है, ये 012 मिल तो जाएगा और सर आपको अभी कल भी मिल अभी जाएगा। अभी बाई चांस अगर आप मिड और स्मॉल कैप का अगर वैल्यूएशन दिखा पाएंगे क्या? तो एक सर वो एक झलक। कैटेगरी सिलेक्शन में पूरा दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, वो कैटेगरी सिलेक्शन करके वर्कबुक है, उसमें सारे वर्किंग है, आप जाके देख सकते हो। एक्सट्रीम दूसरा जैसे आपने ये रिकमेंड तो, मास्टर समरी से -50 है। हाँ वो तो समरी तो देख ली ना। हाँ, आप अभी रिकमेंड कर ही -50 रहे हैं कि लार्ज कैप ज्यादा होना चाहिए, मिड और स्मॉल कैप कम होना अभी चाहिए, आपको रिजल्ट बट मिल जा वो रहा है, ये इसलिए दे रहा है वो क्योंकि मिडिल स्कोर कैप का जो स्कोर कहाँ पहुंच गया है वो देखना था कि। स्कोर सर आपको कैटेगरी सिलेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे डिटेल में जाके। करेक्ट करेक्ट, ठीक। दूसरा जैसे अभी आपने ये रिकमेंड तो कर दिया कि लार्ज कैप ज्यादा लेना चाहिए, सेक्टर वाइज ये क्या रिकमेंड करता है? बैंक, आईटी? सर फिर भरोसे हम डिबेट हो रहे टॉपिक से सर, आज नहीं है हमारा एजेंडा वो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक कोर है सर, एलोकेशन डन। आज का, आज सेक्टोरल ग्लोबल हम रेस्ट बाद में देखेंगे, मरीना को स्टाइल वाला हम और बाद में देखेंगे। तो ये इसका जो लोग अटेंड कर लिए अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल शेयर द वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर दिस एट योर ईज, यू कैन जस्ट पॉज एंड यू कैन नेविगेट द एंटायर वर्कबुक। आप इससे वर्कबुक को नेविगेट कर सकते हैं। त्यांनी कॅटेगरी दिली Any other questions? जो भी मैच कवर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 वर्षाच्या वरचा त्याचा पिरियड आहे किंवा 8 वर्षाचा एनी अदर क्वेश्चन? रविंद्र सर, शंकर सर, सर लॉगिन क्रेडेंशियल कब तक आ जाएंगे? आ जाएगा सर, आज इवनिंग तक आ जाएगा। ओके। सो आज मेजरली पुणे के हैं, उडानी कैपिटल के हैं, कोलकाता के उडानी कैपिटल के लिए करना था मुझे, और उज्जैन के। तो पुणे के वही बस मेंबर्स हैं जो हमारे सेशंस नहीं अटेंड कर पाए थे या जिनको क्लैरिटी चाहिए थी, एंड उज्जैन के मेंबर्स हैं जो। सो पुणे के पहले मैंने उज्जैन में किया था, सो गोइंग फॉरवर्ड अब मैं नासिक में जा रहा हूँ। अगर मैं वहां के लिए मूल्यांकन जीपीटी या कोई चीज कवर करूंगा तो आई विल शेयर द जूम लिंक विद यू। So thank you so much, sir. Only request is please use this as a second opinion. Please use this to avoid a costly financial mistake. आधे से ज्यादा रिटर्न सही डिसीजन से नहीं बनते, आधे से ज्यादा रिटर्न क्या क्या चीजें नहीं करनी है उससे बनते हैं। तो क्या क्या चीजें नहीं करनी है, अगर उसके लिए भी अगर आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर लोगे, 90% ऑफ द जो आपका डिसीजन है वो सॉर्टेड हो जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ यू यूज दिस एज अ सेकेंड ओपिनियन कि क्या क्या चीजें नहीं करनी, अगर आप उसके लिए भी यूज कर लोगे, मोस्ट ऑफ द डिसीजन कैन बी आप एक राइटफुल मैनर में इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस एंड पुटिंग अ कॉन्फिडेंस ऑन पर्टिकुलर डेटा साइंस एज अ इमर्जिंग फील्ड। वी विल स्ट्राइव टू डिलीवर द रिजल्ट। सर बहुत गुंजाइश है, आज जो भी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। आज तक कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम या फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं था ऑफकोर्स सिस्टम में, इसलिए हम एक नैरेटिव के बेसिस पे काम करते थे। प्लीज इस फ्रेमवर्क और सिस्टम को यूज कीजिए अपने एडवाइजरी को और प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो आई एम कॉलिंग इट अ डे। कुछ भी लगता है यू कैन पिंग मी अप। थैंक यू। I will share the video recording with each and everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Very good presentation. Thank you.